Good morning, students. Good morning, ma'am. Good morning. So let's start our today's class. What we have seen yesterday? हमने कल क्या देखा था? No one? हमने कल क्या स्टार्ट किया था? न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था. सेफ्टी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल. ये सेफ्टी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल. उसमें हमने क्या कंप्लीट किया? एनवायरमेंटल सेफ्टी, टाइप्स ऑफ एक्सटिंग्विशर्स, Okay. इलेक्ट्रिकल. Okay, first we have seen environmental safety. In environmental safety, we have studied different types of safety, like fire safety, then इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, then रेडिएशन सेफ्टी, radiation safety, then disposal of infectious waste. यस, डिस्पोजेबल. Okay, so let's do a quick revision of our previous class. Okay, so we have started new chapter, that is safety and infection control. The priority concept of this chapter is itself safety and infection. Okay, so first we have to maintain the safe environment. So we have to maintain environmental safety. How you will maintain a safe environment? So you have to maintain fire safety. What is fire safety? Whenever there is a fire, what is the mnemonic that you have to do the actions in sequence? रेस. Okay, what is race? Tell me in detail. रेस्क्यू एंड रिमूव द क्लाइंट. Yes, rescue and remove the client who are in immediate danger. जिसके आसपास आग है उनको पहले बचाना है. Then एक्टिवेट द फायर अलार्म activate the fire alarm. एंड कन्फाइन द फायर. Confine the fire. What is that? What is that? Confine the fire means? Find the fire means? पोजीशन देना. नहीं. पाने के What लिए is? मतलब बहुत फैलावा नहीं देवानी. Yes, we have to control the fire. We have to maintain a fire in that specific area. We don't want that fire to get spread in whole unit. So we have to confine the fire. We will close the doors and windows that the fire does not get out of that one room or one ward. Okay. Next, what you will do? एक्सटिंग्विश द फायर. Extinguish the fire. We will try to extinguish that fire. Okay, so for extinguishing a fire, which steps you will follow? What is the mnemonic? पास. Pass. Yes, what is pass? Tell me. पुल द पिन. Pull the pin on the fire extinguisher to open that. Then एम एट द बेस ऑफ द फायर. aim at the base of fire. जहां पर भी फायर लगी है उसके बेस पे हमें एम करना है. ऊपर ऊपर से आप फायर एक्सटिंग्विशर से यूज करोगे तो इट वोंट हेल्प. हमें बेस जहां से आग लगी है वहां पर ही एम करके वहां पर ही वो गैस निकालनी है. देन स्क्वीज द एक्सटिंग्विशर हैंडल. यस, स्क्वीज द एक्सटिंग्विशर हैंडल. हमें वो स्क्वीज करना है. फिर देन स्वाइप द एक्सटिंग्विशर फ्रॉम साइड टू साइड. यस, स्वीप द एक्सटिंग्विशर फ्रॉम साइड टू साइड. एक ही जगह पर लेकर खड़े रहने से इट वोंट गेट एक्सटिंग्विश्ड. हमें वो स्वीप करना होगा पूरी साइड टू साइड. So this is the mnemonic you have to follow. Remember this mnemonic. It is very important. It is asked in examination. Next, we have seen table types of fire extinguisher. For different types of fire or different class of fire, there are different types of fire extinguisher which are being used. This is not asked in examination, but this is for your knowledge. Okay, so we know
the nurse's duty. The nurse must know the telephone number for fire brigades. She must got the training, that the drill for the fire evacuation. Oxygen, we have to turn off the oxygen. If the patient is on the ventilator support, what you will do at the time of fire? हमें पता है कि फायर के टाइम हमें ऑक्सीजन बंद करना है, बट पेशेंट वेंटिलेटर पर है, तो आप क्या करोगे? Manually. ओके, मैन्युअली आप पेशेंट को अम्बू बैग से या Bamboo bags. यस रिसक्सिटेशन बैग्स होते हैं, उससे आप मैन्युअली पेशेंट को ऑक्सीजन देते रहोगे जब तक कि आप पेशेंट को एक सेफ जगह पर ट्रांसपोर्ट नहीं कर देते, और वहां जाकर आपको फिर से वो लाइफ सपोर्ट देना होगा, जस्ट लाइक वेंटिलेटर एंड ऑक्सीजन. सो मेक श्योर दिस. अगर पेशेंट खुद से चल पा रहा है तो आप उसे कैसे निकालोगे? पेशेंट इज कम्प्लीटली एम्बुलेटरी, वो चल सकता है, तो व्हाट यू विल डू? Take out them from exit door. We will just order them कि you can walk by yourself, and this is the exit door. We can just simply guide them कि this is how you have to go out from this place, and they are ambulatory, so they can help you also in moving the wheelchairs client, because you cannot move each and every patient, so you have to take help from others. The ambulatory patient can help you. The fire safety team can also help you for moving the patient. If the patient is bedridden, then how you will evacuate that client? Stretcher અથવા direct bed થી જ or Yes, wheelchair. yes, there are three methods. We can shift that patient to stretcher and we can move that patient. We can shift that patient to wheelchair also. And if there is no time for shifting, you can simply take out the patient with their bed. So there are three different methods. And what is the red point, important point for you? What is that? જ્યારે બી ફાયર થાય તો 2 mnemonic યાદ રાખવાના, રેસ અને પાસ. Yes, whenever there is a fire, remember mnemonic race. Whenever you are extinguishing fire, remember mnemonic પાસ. pass. Yes. Okay. Then electrical safety. What is that? What is that? Electrical safety means? જ્યારે બી ઇલેક્ટ્રિકલ ફાયર થાય તો આપણે શું સેફટી મેજર. Not electrical fire. ઓકે, ના થાય એના માટે. No. इलेक्ट्रिक शॉक. पेशेंट को इलेक्ट्रिक शॉक ना लग जाए, इलेक्ट्रिसिटी से पेशेंट को हैजर्ड ना हो, वैसे उस टाइम पर हमें क्या ध्यान रखना है? इलेक्ट्रिकल शॉक्स पेशेंट को भी लग सकते हैं, स्टाफ मेंबर्स को भी लग सकते हैं, सो वी हैव टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इन हॉस्पिटल. सो हाउ यू विल मेंटेन इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, टेल मी. चलो वन बाय वन पॉइंट्स आप बोलो. જે બી વાયરિંગ ને બધું એ અંડરગ્રાઉન્ડ રાખવાનું પ્રોપર. यस, विजिबल नहीं होना चाहिए, प्रॉपरली ग्राउंडेड होने चाहिए. देन જે બી કરંટ ને બધું હોય ઓવરલોડ ના થઈ જાય એનું यस, ધ્યાન રાખવાનું. whichever plug or switch board we are using, we have to make sure कि वो ओवरलोड ना हो जाए. सारे इंस्ट्रूमेंट्स एक ही स्विच बोर्ड पर आप नहीं चला पाओ, ना चला दो, वो ध्यान रखना है. अगर ओवरलोड हो जाएगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा. देन જે બી વાયરમાંથી વધારે પડતી ઇલેક્ટ્રિસિટી જનરેટ થતી હોય એમાં રેડ લેબલ કરવાનું કે ओके, જેથી આપણે ओके, વોર્ન થઈ શકે. ओके, that is the thing, we can do that. Then other students, પછી ઇલેક્ટ્રિકલ અપ્લાયન્સ હોય નિયર સિંક કે બાથ કે વોટર જે હોય ત્યાં આગળ નહીં રાખવાનું. we have to keep the electrical supply or cords away from the water. पानी के आसपास नहीं रखना है. That is the safe place to make them far from the water areas. So that is the safe idea. What other things? Other students have not studied yesterday? आप लोगों ने अटेंड नहीं किया था क्या? सिर्फ एक ही स्टूडेंट ने अटेंड किया था कल? Heath, what you will do?
Heath, Nirav, Priyangi, Riddhi. For electrical safety, what measures you will take? आप घर पे क्या करते हो? Simply you have to do such things in hospital. कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, हमें शॉक ना लगे ऐसा ही ध्यान रखना है. So what you can do? The points are in front of you, आप देख के भी बोल सकते हो. अंदर कारपेट वायरिंग नहीं रखा। Sorry? अंदर कारपेट वायरिंग नहीं रखा। Yes. We cannot place the wirings under the carpet. Carpet के नीचे छिपा के ऐसे नहीं रखना है. That is the good thing. फिर જ્યારે બી એક્સટેન્શન કોની જરૂર પડે ત્યારે જ એનો યુઝ કરવાનો અને કરો તો ફ્લોર થી ટેપ મારીને કરવાનું. Yes, don't use extension cords unnecessarily. जब भी आपको ऐसा लगे कि नहीं अब जरूरत है तभी यूज करना चाहिए. और जो स्पेशल इलेक्ट्रिकल टेप आती है उसको उससे उसे चिपका के रखो, कोई यहाँ वहां मूव ना हो जाए और वो ऐसे नॉट्स ना बन जाए, वायरिंग्स में कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए. अगर ऐसे नॉट्स बन के ऐसे खींच जाएगा वायर तो शायद वायर टूट जाए, शॉक लग सकता है. सो वी हैव टू टेप देम सिक्योरली. देन Heat longer. Do not yes, use heat ones. yes. If the machine is for a higher voltage and anything like that, so try to use three prong electrical cords, because the third longer prong is for grounding. वो बैलेंस कर देता है. जो टू स्मॉल प्रोंग्स है वो करंट ले जाने और लाने में काम करता है. जो थर्ड प्रोंग है दैट इज फॉर ग्राउंडिंग. वो बैलेंस कर देगा इलेक्ट्रिकल करंट को. देन Then જે ઇલેક્ટ્રિકલ કોર્સ હોય એને રેગ્યુલર ચેક કરવાનું કે ફ્રાય નહીં થઈ ગયું કે ડેમેજ ના થઈ ગયું હોય. यस, वी हैव टू चेक द कॉर्ड्स. ये वायर्स है उनको चेक करना है, कहीं से ऐसे फट के अंदर के वायर्स एक्सपोज हो गए हो और ऐसा कुछ ना हो. देन कभी भी જ્યારે બી वायर से प्लग निकालो क्या, वायर खींच के ऐसे प्लग निकालना हो, आप पहुंच नहीं रहे हो तो आप सिर्फ वायर ऐसे खींच के प्लग निकाल दोगे? નહીં. नहीं, वी हैव टू होल्ड द प्लग. वी कैन नॉट सिंपली स्ट्रेच द कॉर्ड. हमें प्लग पकड़ के ही निकालना है, ऐसे कॉर्ड खींच के नहीं निकालना है. देन then ક્લાયન્ટને ઇલેક્ટ્રિક શોક આપવાનો હોય તો ઇલેક્ટ્રિસિટી એને ટચ કરતા પહેલા ઓફ કરી દેવાની. No, 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 no. If you are giving the shock to the client, and if you are if you are switching off the electricity, how you will provide the shock to the client? आप पेशेंट को शॉक देने वाले हो और आप स्विच बंद कर दे हो, तो फिर पेशेंट को शॉक कैसे लगेगा? वो मशीन से शॉक कैसे लगेगा? आपने बंद कर दिया. બિફોર ટચિંગ ધ ક્લાયન્ટ. नो, इट इज अबाउट द शॉक, इलेक्ट्रिकल शॉक. अगर पेशेंट को करंट लग जाता है एक्सीडेंटली, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द गिविंग डीसी शॉक. दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट वो जो हम कार्डियक अरेस्ट में शॉक देते हैं, वो शॉक की बात नहीं हो रही. एक्सीडेंटली अगर पेशेंट को शॉक लग जाता है, અચ્છા. पेशेंट रिसीव्स द शॉक, एट दैट टाइम क्या करना है? आप पता है आप क्लाइंट को बचाने के लिए चले जाओगे, क्लाइंट को शॉक लगा है, आप क्लाइंट को छूओगे तो आपको भी शॉक लगेगा. सो बिफोर टचिंग द क्लाइंट, मेक श्योर कि जो सारे स्विच बोर्ड है, बिकॉज क्लाइंट का बेड भी इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है, वो रिमोट वाला, क्लाइंट के सारे आजू बाजू के इंस्ट्रूमेंट्स भी इलेक्ट्रिसिटी वाले हैं. तो मे बी देयर माइट बी चांसेस कि कोई वायर ऐसे हो गया और क्लाइंट को शॉक लगा. आपको नहीं पता कि कौन से वायर से क्या शॉक लगा है, तो यू हैव टू स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी फर्स्ट एंड देन टच द क्लाइंट, अदरवाइज आपको भी शॉक लग जाएगा. अंडरस्टूड? दे મેડમ आर તો नॉट. આપણે ડિફિબ્રિલેટરમાં આપણે આ પોઈન્ટ નતો આપણે એ કર્યો. Defibrillator is different thing. In defibrillator, before giving the shock, you have to Yes. stay away from the client. You cannot switch off the electricity. ઓકે. Understood? अगर इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दोगे तो डिफिब्रिलेटर मशीन चलेगा कैसे? अंडरस्टूड? ઓકે. हाँ, उस टाइम जब आप शॉक देते हो तब आपको पेशेंट को टच नहीं करना है. मेक श्योर कि आप पेशेंट से अलग दूर हो, बेड से कोई भी टच किया हुआ ना हो. अदरवाइज जब पेशेंट को आप शॉक दोगे तो जिसने बेड को टच किया है उसको भी शॉक लग जाएगा एंड पर्सन कैन डाई. सो इन दैट देयर इज अ डिफरेंस कि आपको स्विच ऑफ नहीं करना है. दैट इज द डिफरेंस. ओके.
Understood? Yes, sir. Okay. What is the red important point? What is the red important point that you have to remember? What is the red important point? चलो बोलो, अदरवाइज आज का लेक्चर रिवीजन में ही खत्म हो जाएगा. We cannot complete new topics. Whenever client is bringing his or her own electrical equipments to the hospital, what you have to do? Inspect for safety. Yes, before using that appliances, फर्स्ट आपको इंस्पेक्ट करना है कि वो बराबर चल रहा है, वो सेफ तो है ना पेशेंट के लिए और हॉस्पिटल के मेंबर्स के लिए भी सेफ होना चाहिए. देन यू कैन अलाउ द पेशेंट टू यूज दैट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट. इफ इट इज नॉट सेफ, then you have to tell the patient don't use this device in hospital settings. Understood? Yes, ma'am. Next is radiation safety. Radiation safety means वो जो radiations hospital environment में होते हैं, radiation of X-ray, MRI, all these things. Along with that, the radiations of implant also. Whenever the implant is we are using in the cancer patient, so उससे भी radiation लगता है. So we have to maintain the radiation safety for staff members also and for other clients also. So how you will maintain radiation safety? Tell me. चलो फटाफट. This is revision batch. You have to just quickly. सिम्युलेटर बैच Sorry. सिम्युलेटर बैच लगा के Yes. जो भी पेशेंट को केयर कर रहे हैं या जो भी वो वार्ड में है, वो सारे डोसीमीटर बैच पहने के उससे पता चलेगा, मॉनिटर कर पाएंगे हम कि रेडिएशन का कितना एक्सपोजर है. देन Then lead apron પહેરવાનું. लीड एप्रॉन पहनना होगा हमें. यस. फिर क्लाइंट को दूसरे पेशेंट के साथ हम रख सकते हैं. कैन वी नहीं. को द क्लाइंट विद अदर पेशेंट? नो, वी हैव टू गिव प्राइवेट रूम. जिसको भी रेडिएशन ऐसे इम्प्लांट किया गया है, इंटरनल रेडिएशन रखा गया है, दैट इज कॉल्ड एज ब्रेकीथेरेपी, उससे हमें प्राइवेट रूम देना होगा. फिर જ્યાં સુધી ઇમ્પ્લાન્ટ રિમૂવ ના થાય ત્યાં સુધી પેશન્ટના લિનન હોય એ એના રૂમમાં જ રાખવાના. यस, जब तक पेशेंट के अंदर वो इम्प्लांट इंसर्ट किया गया है और वो रिमूव नहीं कर लेते, तब तक उतने दिन तक सारी लिनन्स चेंज करनी है पेशेंट की बेड की, पर वो सारी चेंज की हुई लिनन्स, स्पॉइल्ड लिनन्स पेशेंट के रूम में ही रखनी है. वी कैन नॉट टेक आउट दैट लिनन्स. इसका मतलब वो नहीं कि आपको लिनन ही चेंज नहीं करनी, लिनन चेंज करनी है रोज, पर वो लिनन चेंज की हुई अंदर ही रखनी है, बाहर नहीं लेके आनी. देन अगर જે पेशेंट બી का ઇન્ફેક્શિયસ મટીરિયલ હોય એને લેબલ પ્રોપર કરો. यस, जो भी वो रेडियो एक्टिव मटेरियल हो उसको प्रॉपर लेबलिंग करना होगा. अगर गलती से पेशेंट का इम्प्लांट निकल गया है, बेड पर पड़ा हुआ है, सो व्हाट यू विल डू? व्हाट यू विल डू? पेशेंट का इम्प्लांट निकल गया है और पेशेंट के बेड पर ही है, सर्वाइकल इम्प्लांट लगाया था और वो निकल गया, तो તો આપણે ચીટો ફોર્સેપ થી ઉઠાઈને એને પ્રોપર જગ્યાએ મૂકવાનું. yes, we can directly touch that. નો. Can we? No, we cannot directly touch that implant device or implants. We have to hold them with Cheetle forceps or other instruments, and we have to place in a jar. And then we have to inform the PHCP that the implant has come out from the patient. जितना हो सके उतना frequently patient के रूम में जाना चाहिए. Yes. Yes or no? યસ મેમ. जितना हो सके उतना फ्रीक्वेंटली पेशेंट के रूम में जाना चाहिए.
वी कैन नॉट फ्रीक्वेंटली गो टू द पेशेंट्स रूम। हमें लिमिट करना होगा, सारा काम एक साथ याद करके एक ही बारी में खत्म करके आना होगा। फ्रीक्वेंटली वी कैन नॉट गो टू द पेशेंट्स रूम। फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं, पेशेंट में लाइक रेडिएशन इम्प्लांट किया गया है, सो उसके बाहर हम ऐसे रेडिएशन हैजार्ड की साइन भी लगा सकते हैं, तो जो रिलेटिव आए उन्हें पता चले और डायरेक्टली पेशेंट के रूम में ना चले जाए, उन्हें पता चले कि यस दिस इज समथिंग डेंजरस, सो ना जाए। तो ऑल दिस थिंग्स वी कैन डू। नेक्स्ट इज डिस्पोजल ऑफ इंफेक्शियस वेस्ट। व्हाट वाज दैट? दिस इज एवरीवन शुड नो, ये सबको पता होना चाहिए। अभी तो जो नॉन मेडिकल पर्सन होते हैं उन्हें भी पता होता है कि कौन सा वेस्ट कैसे, उनको इतना पता होता है कि हॉस्पिटल में सारा वेस्ट एक डस्टबिन में नहीं जाता, देयर आर डिफरेंट कलर्स ऑफ डस्टबिन। જે બી શાર્પ મટીરિયલ હોય એને ઇમિડિયેટલી યુઝ કરીને આફ્ટર યુઝ ડિસ્કાર્ડ કરી દેવાનું. પ્રોપર પંચર રેઝિસ્ટન્ટ ડિસ્પોઝેબલ કન્ટેનર હોય એમાં. Yes, the container must be puncture proof, leak proof, और उसको प्रॉपर लेबल किया होना चाहिए या फिर कलर कोडिंग होना चाहिए। सारे जो वेस्ट मटेरियल्स जनरेट होते हैं हॉस्पिटल में उसको कैसे डिस्कार्ड करना है? प्रॉपर कलर कोडिंग के डस्टबिन में डिस्कार्ड करना है। यू कैन नॉट रैंडमली थ्रो द वेस्ट इन एनी डस्टबिन, सो देयर आर डिफरेंट कलर कोडिंग्स, यू हैव टू फॉलो दैट। एंड सारे डस्टबिन कहाँ पर रखे होंगे? एट द एंट्रेंस। कहाँ पर होने चाहिए? सारे एक प्रॉपर एरिया में होने चाहिए सारे डस्टबिन, और वहां जाके आपको डिस्कार्ड करना है। इट इज इन अ सेफ प्लेस, जो डोर ऐसे साइड पे कॉर्नर वाली जगह होती है जहां कोई आता जाता नहीं है, वहां पे होना चाहिए। अंडरस्टूड? યસ સર. Okay, what is the really important point that you have to remember? જે બી શાર્પ મટીરિયલ હોય એને રીકેપ બેન નહીં કરવાનું, અધરવાઇઝ બ્રોકન થાય તો રિસ્ક ઓફ નિડસ્ટિક ઇન્જરી. Yes, जो भी नीडल्स है, शार्प ऑब्जेक्ट्स है, उसे यूज करने के बाद रीकैप नहीं करना है, बैन नहीं करना है, ब्रोक नहीं करना है, अदरवाइज देयर माइट बी रिस्क ऑफ नीडल स्टिक इंजरी। सो रिमेंबर दिस पॉइंट। नेक्स्ट इज फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन ओल्डर क्लाइंट, जिसकी वजह से सारे एक्सीडेंट्स के रिस्क बढ़ जाते हैं। तो कौन से फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं ओल्डर क्लाइंट में? રિસ્ક ફોર ફોલ. ओके, रिस्क फॉर फॉल वो एक एक्सीडेंट है, पर चेंजेस क्या हुआ जिसकी वजह से वो एक्सीडेंट हुए? फिजियोलॉजिकल चेंजेस, बॉडी में क्या चेंजेस आए कि जिसकी वजह से? મસ્ક્યુલોસ્કેલેટલ ચેન્જીસ હોય, मस्कुलोस्केलेटल નર્વસ चेंजेस, સિસ્ટમ ચેન્જીસ, સેન્સરી नर्वस, ચેન્જીस, यस, एंजाइना यूरिनरी चेंजेस. दिस आर द चेंजेस जिसकी वजह से सारे रिस्क बढ़ जाते हैं। रिस्क ऑफ इन्फेक्शन भी बढ़ जाएंगे, रिस्क ऑफ फॉल के भी बढ़ जाएंगे, फिर रिस्क ऑफ बर्न्स के भी बढ़ जाएंगे बिकॉज उनका सेंसरी परसेप्शन भी चेंज हो गया है। सो ये सारे रिस्क बढ़ जाएंगे ड्यू टू दिस फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैपेंस इन द ओल्डर एज। रिस्क फॉर फॉल असेसमेंट, व्हाट वाज दैट? वो क्या होता है? रिस्क फॉर फॉल असेसमेंट मीन्स जब भी पेशेंट एडमिट होता है, सो यू आर असेसिंग द पेशेंट कि ये इस पेशेंट को कितना रिस्क है फॉल का, ज्यादा है या कम है। अकॉर्डिंग टू द असेसमेंट, आपने जब असेसमेंट की आपको पता चला कि ये हाई रिस्क पेशेंट है, सो यू हैव टू टेक सर्टेन स्टेप्स और मेजर्स टू प्रिवेंट द फॉल। इफ देयर इज अ लो रिस्क देन इट्स ओके, देन इट्स फाइन, कोई रिस्क नहीं है पेशेंट को, सो यू हैव टू डू द असेसमेंट। आप पेशेंट को पूछ सकते हो कि आपको क्या लगता है, आप बार बार क्यों गिर जाते हो, क्या होता है ऐसा? आपने कुछ घर पे ट्राई किया है कि आप ना गिरो, पहले कभी गिर गए हो, फिर सडन वो एनवायरमेंटल चेंजेस होते हैं, कोई मेडिकेशन पेशेंट ले रहा हो, सो 2 बार ना हो जाए। वी हैव टू चेक द मेडिकेशन ऑल्सो बिकॉज ओल्डर एज में ऐसे बहुत क्वेश्चंस होते हैं कि मेडिकेशन ओवरडोज हो जाना, 2 मेडिकेशन का इंटरेक्शन हो जाना, उन्हें नहीं पता है कि ये मेडिकेशन क्या है, कौन सी है, व्हाट इज द नेम। उनको सिंपली उतना पता है कि 1 बजे ये मेडिसिन लेनी है, 2 बजे ये मेडिसिन लेनी है, गलती से वो 2 मेडिसिन साथ में भी ले सकते हैं। दो एक बार ली फिर भूल गए कि मैंने ली थी या नहीं ली थी, तो फिर से दूसरा डोज ले लेंगे। सो इट हैपेंस इन ओल्डर एज, तो हमें वो खास ध्यान रखना है, उसकी वजह से फॉल रिस्क हो सकता है। सो यू हैव टू जस्ट सिंपली असेस द रिस्क ऑफ फॉल कि ये पेशेंट को कितना रिस्क है फॉल का।
मेजर्स टू प्रिवेंट द फॉल्स। अभी आपको रिस्क पता चल जाएगा कि ये पेशेंट को ज्यादा रिस्क है, सो आप कैसे प्रिवेंट करोगे फॉल जिसको रिस्क ज्यादा है? व्हाट यू विल डू? એવા પેશન્ટ હોય જેને રિસ્ક હોય એવા પેશન્ટને નિયર નર્સિંગ સ્ટેશન રાખવાના. Yes, we can assign the patient's room near the nursing station. Then જે બી પ્રિવેન્ટિવ મેઝર હોય એમને શીખવાડવાના. यस, हमें पेशेंट को भी सिखाने होंगे कि दिस इज हाउ यू कैन प्रिवेंट योर फॉल। बेड से ज्यादा नहीं उठ जाना है, अभी जब भी उठो तब पेशेंट नर्सिस को या यूएपी को बुलाओ। ऐसे सारे प्रिवेंटिव मेजर्स हमें पेशेंट को भी सिखाने होंगे। ક્લાયન્ટને અસેસ કરવાનું ફ્રીક્વન્ટલી. यस, फ्रीक्वेंटली क्लाइंट को रूम में जाके चेक करना है कि क्लाइंट गिर तो नहीं गया ना। ક્લાયન્ટને ઇન્સ્ટ્રક્ટ કરવાનું કે જ્યારે બી જરૂર પડે ત્યારે આસિસ્ટન્ટ માટે બોલાવે એમ. यस, वी हैव टू इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट कि जब भी जरूरत हो असिस्टेंट हेल्प के लिए बुलाओ। देयर इज नर्सिंग कॉल बेल, यू कैन यूज दैट आल्सो। बेड्स कैसे रखेंगे? बेड्स की हाइट कैसे रखेंगे? बेड्स की हाइट कैसे रखेंगे हम? लो लो रखनी है। पोजीशन. हाँ, बेड की हाइट हमें लो रखनी है। इससे दो बेनिफिट होता है। इफ द पेशेंट फॉल्स डाउन, सोते हुए सुपाइन पोजीशन में गिर जाए तो पेशेंट को ज्यादा चोट ना लगे, और पेशेंट की बेड की हाइट अगर ज्यादा होगी तो पेशेंट को उतरने में तकलीफ हो जाएगी और पेशेंट गिर सकता है। सो हाइट लो होने से पेशेंट इजिली उतर पाएगा बेड से। सो द both two benefits are there for keeping the bed position low. So लो रखना है, प्रॉपर लाइटिंग रखनी है। टॉयलेट सीट कैसी होनी चाहिए? टॉयलेट सीट कैसी होनी चाहिए? टॉयलेट सीट कैसी रखोगे आप बाथरूम की? हाई रेज्ड होनी चाहिए टॉयलेट सीट। फिर बाथरूम में दूसरा क्या आप रख सकते हो कि जिसका सपोर्ट ले सके पेशेंट? रेलिंग। રેલિંગ. ग्रैब बार्स, यस, ग्रैब बार्स हम रख सकते हैं बाथरूम में। फ्लोर्स कैसे होने चाहिए? नॉन स्लिपरी। नॉन स्लिपरी फ्लोर्स होने चाहिए। बाथरूम का फ्लोर गीला नहीं होना चाहिए, नॉन स्लिपरी होना चाहिए। अगर पेशेंट ने कुछ सॉक्स फुटवेयर कुछ भी पहना है, सो वो भी कैसे होने चाहिए? એન્ટી સ્કીડ હોય છે. यस, एंटी स्किड, दैट इज नॉन स्लीपरी होने चाहिए। पेशेंट को रात में बार बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है, सो व्हाट यू कैन डू, आप पूरे दिन क्या करोगे, उसको वॉशरूम कराते रहोगे, टॉयलेट ट्रेनिंग करा दोगे, स्केड्यूल कर दोगे पूरा। सो जिसकी वजह से रात को उसको बार बार ना जाना पड़े अंधेरे में। फ्लोर के आजू बाजू ऐसे सब जैसा तैसा पड़ा हुआ तो कैसा होगा, पेशेंट गिर जाएगा। सो आप क्लटर फ्री रखना है पूरा रूम। पेशेंट की सारी जो उसकी जरूरत की चीज है, वो जो रेगुलरली यूज करता है, उसके सनग्लासेस, उसका मोबाइल फोन चार्जर, कोई बुक पढ़ता हो, तो वो सब कैसी रखोगे आप? પેશન્ટ ઇઝીલી પહોંચી શકે રીચ. यस, इन पेशेंट्स रीचेबल डिस्टेंस, पेशेंट इजिली उसको ले सके, उसको पूरा बैंड ना होना पड़े बेड के, ऐसे बाहर से खड़ा ना होना पड़े। सो उसको रीचेबल एरिया में आपको रखना है। सो दिस इज द थिंग्स यू कैन डू टू प्रिवेंट द फॉल। नेक्स्ट इज, जब आप पेशेंट को एम्बुलेट कराते हो तो आप कैसे उसकी सेफ्टी प्रमोट करोगे, सेफ्टी मेंटेन करोगे? व्हाट इज द बेस्ट थिंग? जब भी आप एम्बुलेशन कराते हो तब कैसे पेशेंट की सेफ्टी मेंटेन करोगे? ઓલ બેડ વ્હીલચેર્સ લોક રાખવા. ओके, बट वी आर एम्बुलेटिंग द पेशेंट, हम पेशेंट को चलवा रहे हैं, पेशेंट खुद अपने पैरों पर चल रहा है। सो एट दैट टाइम व्हाट यू विल डू, हाउ टू प्रमोट द सेफ्टी व्हेन यू आर एम्बुलेटिंग अ क्लाइंट? व्हाट इज दैट डिवाइस दैट वी यूज? गेट कौन सा? बेल्ट। गेट बेल्ट, यस, वी आर यूजिंग गेट बेल्ट। गेट बेल्ट की वजह से हम पेशेंट को प्रॉपरली होल्ड कर पाएंगे और पेशेंट गिरेगा नहीं। फिर जब भी आप चलवा रहे हो पेशेंट को और पेशेंट एकदम डीजी हो गया है, अनस्टेडी हो गया है, सो व्हाट यू विल डू?
पेशेंट को आप चलवा रहे थे, आपने गेट बेल्ट से ही पकड़ा हुआ था पेशेंट को, और पेशेंट बोल रहा है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे ठीक नहीं लग रहा, तो आप क्या करोगे? Return Sitting. the client to nearby chair. यस, हमें जो नियर बाय चेयर है, कुछ भी है, बेड चेयर जो भी है, तुरंत उसको बिठा देना है पहले, अदरवाइज क्लाइंट गिर जाएगा और आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। सो पहले उसको बिठा दो। फिर अब जब भी गेट बेल्ट यूज करते हो तो गेट बेल्ट कैसे, उसका फिटिंग कैसा होना चाहिए? ना बहुत ज्यादा ना बहुत लूज, कितना होना चाहिए कि जितना उसमें आप अपनी फिंगर्स टक कर सको। आपको वो ग्रैब, जो बेल्ट है उसको होल्ड करना है, ऐसे फिंगर्स डाल के आपको दोनों साइड से कमर से, पेशेंट को ऐसे दोनों साइड कमर से पेशेंट को ऐसे गेट बेल्ट से पकड़ना है। सो बहुत टाइट होगा तो आप फिंगर से इंसर्ट नहीं कर पाओगे और पेशेंट को भी डिस्कम्फर्ट होगा, और बहुत लूज होगा तो इंसर्ट करने के बाद भी देयर विल बी अ गैप, सो आप बैलेंस नहीं कर पाओगे। सो उतना स्नगली फिट होना चाहिए कि आपकी फिंगर्स अंदर जा सके। अंडरस्टूड? और पेशेंट को गेट बेल्ट आप कब लगाओगे? जब पेशेंट को आप बेड से निकाल दो, पेशेंट खड़ा हो गया है, तब लगाओगे। ऐसे चलना स्टार्ट किया है, फिर आपको याद आया कि लाओ गेट बेल्ट लगाना है, तब लगाओगे। पेशेंट को गेट बेल्ट कब लगाओगे आप? Prior to ambulation. यस, आपको पेशेंट को जब भी बेड, आपको पता है कि पेशेंट को आप चलाने के लिए गए हो, सो बिफोर मूविंग आउट द पेशेंट, बेड से बाहर निकलने से पहले ही गेट बेल्ट लगा दो। सो आपको उसमें भी इजी रह जाएगा। आप जैसे ही पेशेंट को खड़ा करोगे तो पेशेंट ऐसे मूव करेगा, पेशेंट का बैलेंस नहीं होगा। सो आप गेट बेल्ट आपने पहले से ही लगाया हुआ होगा तो आप पेशेंट को होल्ड भी कर पाओगे। सो दैट इज द सेफ थिंग। नेक्स्ट इज द जॉइंट कमीशन। जॉइंट कमीशन है, उन्होंने सेफ्टी गाइडलाइंस प्रोवाइड किए, दैट इज द लिंक, उस पे आप मिल सकती है। हेल्थ केयर पर्सनल जब पेशेंट को शिफ्ट करते हैं तब उनको भी इंजरी हो जाती है, मसल स्प्रेन और स्पाज्म हो जाता है, तो हमें ना हो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हमें इंजरी ना हो, हेल्थ केयर वर्कर्स को भी ऐसे पेशेंट लिफ्ट और शिफ्ट करने में इंजरी हो जाती है, आपने देखा होगा कमर में पेन हो जाता है, वो गिर जाते हैं पेशेंट को शिफ्ट करने से, बहुत हैवी पेशेंट हो तो क्या कर सकते हो आप? आपने पेशेंट शिफ्ट तो किया ही होगा अपने स्टूडेंट लाइफ में या व्हेन यू आर डूइंग अ जॉब वर्क एक्सपीरियंस में। सो आप क्या ध्यान रखोगे कि आपको इंजरी ना हो? आवर सेफ्टी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। व्हाट यू विल डू, इट इज इन જે फ्रंट બી ऑफ यू। यस, જે બી સેફટી ઇક્વિપમેન્ટ હોય એનો યુઝ કરવાનો. there are different types of safety equipments which you can use. अगर पेशेंट बहुत मोटा है so don't do it by yourself, seek for the assistant, दो तीन लोग को बुलाओ, करो, you can do that also। फिर पोस्चर आपका कैसा होना चाहिए? how should your posture to be? ऐसे कमर से पूरा झुक के पेशेंट को खींचना है। नॉर्मली हम तो वैसा ही करते हैं। એ લિફ્ટ કરવાનું ક્લોઝ ટુ ધ બોડી. यस, हो सके उतना पेशेंट, अगर पेशेंट को फॉर एग्जांपल आई एम एट द साइड जहां से मुझे पेशेंट को स्ट्रेचर पर शिफ्ट करना है, सो मैं पहले क्या करूंगी, पेशेंट को बेड की बॉर्डर पर ला दूंगी। सो मेरा और पेशेंट का डिस्टेंस कम हो जाए, बिकॉज बीच में एक स्ट्रेचर भी है। सो कितना डिस्टेंस हो जाएगा अगर पेशेंट दूर होगा तो? मैं पहले पेशेंट को ऐसे बहुत नजदीक ला दूंगी, फिर मैं पेशेंट को खींचूंगी। कैसे खींचना है, मेरी पोजीशन कैसी होनी चाहिए, ऐसे पूरा बैंड डाउन होके खींचना है पेशेंट को? कैसे खींचना है पेशेंट को? ની થી બેન્ડ એટ ધ ની. यस, वी शुड बैंड फ्रॉम द नीज, हमें नी से ऐसे बैंड होना है। हमारा जो पेल्विक एरिया है वो बेड पर ऐसे हम टक कर देंगे, बेड या स्ट्रेचर जो भी है वहां पर ऐसे टक कर देंगे। नी से हम बैंड हो गए इसलिए हम झुक तो गए ही ऑलरेडी, वी डोंट हैव, देयर इज नो नीड टू बैंड डाउन फ्रॉम द बैक, हमें बैक से ऐसे झुकने की जरूरत नहीं है। सो हम नी से बैंड डाउन होके पेशेंट को ऐसे खींचेंगे। सो दिस इज हाउ यू हैव टू यूज ऑल द मसल्स इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर, कि आपको कोई इंजरी ना हो, मसल स्पाज्म ना हो। दिस इज द बेस्ट टेक्निक, सो यूज दिस।
इससे भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। restraints, what is that? restraints means પ્રોટેક્ટેડ ડિવાઇસ જે પેશન્ટની ફિઝિકલ એક્ટિવિટી લિમિટ કરવા માટે આપણે યુઝ કરીએ. yes, these are type of devices, safety device, protective device, जो पेशेंट को मोबिलिटी, जो पेशेंट एक्टिविटी कर रहा है उसकी लिमिट करने के लिए। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ restraints are there? ફિઝિકલ એન્ડ કેમિકલ રિસ્ટ્રિક્શન. Physical and chemical restraint. Side rails are also considered as restraints. In which condition you cannot consider side rail as a restraint? कौन सी कंडीशन में वो restraint नहीं कहलाएगा? बाकी सारी कंडीशन में side rails restraint ही कहलाएगी। Sedated client. Yes, when the client is sedated, हमें client को गिरने से बचाना है। So that's why वो कंडीशन में restraint नहीं कहलाएगा। But yes, always follow the agency policy. अगर एजेंसी में ऐसा हो कि sedated client में भी अगर side rails करना restraint नहीं कहलाता है, so we cannot up the side rails. Normally कोई भी पेशेंट में side rails नहीं करना। अगर आप side rails करोगे, so it indicates you are restraining a client and you will be held liable. So side rails unnecessary नहीं करना है। इन इंडियन प्रैक्टिस जब भी पेशेंट आए तो हम पहली चीज क्या करते हैं? साइड रेल्स अप कर देते हैं। बट इन एंक्लेक्स कंट्रीज साइड रेल्स अप करने से वो रिस्ट्रेन कहलाएगा एंड यू विल बी हेल्ड लायबल। सो डोंट डू रेज द साइड रेल्स अननेसेसरीली। फिजिकल रिस्ट्रेंट्स में आप क्या करते हो? What you will do in physical restraint? પ્રોટેક્ટિવ ડિવાઇસનો યુઝ કરીને અને ફિઝિકલ એક્ટિવિટી લિમિટ કરી દઈએ. There are different types of bands and devices जिसकी वजह से हम पेशेंट को बांध के रख सकते हैं। Chemical restraints are chemical restraints means મેડિસિનથી પેશન્ટને पेशेंट को आप सिडेटिव्स देकर पेशेंट की मोबिलिटी इनहिबिट कर दोगे, मिडाजोलम और वैसा सब देकर पेशेंट को सुला देते हो, सो एक्टिविटी ही ना करे। सो दैट इज केमिकल रिस्ट्रेंट्स। इंटरवेंशंस, जब भी रिस्ट्रेन करना हो तो पहले क्या करना चाहिए? पेशेंट आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, पेशेंट सब कुछ ऐसे निकाल रहा है, सारी ट्यूबिंग्स और पूरा हिल रहा है, सो व्हाट यू विल डू? Physical restraint. डायरेक्टली यू विल डू फिजिकल रिस्ट्रेंट? Inform PHCP. ओके, वी विल इन्फॉर्म द पीएचसीपी। फिर Take consent from the consent ओके, कंसर्न પહેલા डायरेक्ट અલ્ટરનેટિવ ડિવાઇસનો યુઝ કરવાનો. फर्स्ट गो फॉर द अल्टरनेटिव डिवाइसेस। पेशेंट सपोर्टिव नहीं है, बहुत ही अनकोऑपरेटिव है, सो डायरेक्टली आप रिस्ट्रेन नहीं कर सकते। देयर आर डिफरेंट मेथड, पहले वो यूज करो। अगर उससे भी काम नहीं बन रहा, देन गो फॉर द रिस्ट्रेन। फिर आप पीएचसीपी से बात करो कि वी हैव ट्राइड ऑल दिस थिंग्स बट नथिंग वर्क, प्लीज गिव अस प्रिस्क्रिप्शन सो वी कैन रिस्ट्रेन द पेशेंट्स, और वो प्रिस्क्रिप्शन देगा। पर डायरेक्टली रिस्ट्रेन नहीं करना कभी भी, पहले ऑलवेज गो वर्क फॉर द अल्टरनेटिव डिवाइसेस। आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, आपको एक सिचुएशन दी है, पेशेंट कोऑपरेट नहीं कर रहा है, वैसा सब है, एंड देयर विल बी ऑप्शंस। सो ऑप्शंस में पहले जो भी ऑप्शन ऐसे हो कि ऑल्टरनेटिव थिंग्स का हो, तो वो पहले सिलेक्ट करना। डोंट डायरेक्टली सिलेक्ट द रिस्ट्रेनिंग ऑफ पेशेंट। ओके, दे माइट आस्क सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। उनको आपकी जजमेंट देखनी है कि ऐसी सिचुएशन में आप क्या करते हो। आपको पता होना चाहिए कि पहले रिस्ट्रेन नहीं करना है, पहले ऑल्टरनेटिव वे यूज करना है, देन वी हैव टू गो फॉर द रिस्ट्रेन। सो देयर आर सर्टेन ऑल्टरनेटिव्स वे। कौन से थे? safety and fall prevention, room located to the near nurses station, orientation to surroundings, बेड और चेयर अलार्म एक्टिवेटेड रखना है। पेशेंट बार बार खड़ा हो जाता है तो हम अलार्म्स रख सकते हैं, जैसे ही पेशेंट ऐसे पैर नीचे करेगा अलार्म बज होना स्टार्ट हो जाएगा। चेयर में भी ऐसा होता है। comfortable and safe position, personal belongings in reach, pain control, visual and auditory stimuli appropriate होना चाहिए। टॉयलेटिंग रूटीन एस्टेब्लिश करना होगा। एक्सरसाइज एंड एम्बुलेशन स्केड्यूल प्लेस में होना चाहिए। नॉन स्किड सॉक्स और वो सब हमें ध्यान रखना है। सपोर्ट पर्सन्स व्हेन प्रेजेंट व्हेन पॉसिबल, पेशेंट के ध्यान के लिए उसके फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, वो भी चलेंगे। और इफ दे आर नॉट देयर, वी हैव टू प्लेस द यूएपी।
बने उतना यूएपी रखना है, बिकॉज एंग्लिक्स कंट्रीज में दे आर नॉट अलाउइंग अ रिलेटिव टू स्टे विद द पेशेंट, सो ऑलवेज गो फॉर द यूएपी। यूएपी को बोलना है कि आप पेशेंट के साथ बैठो, पेशेंट का ध्यान रखो, पेशेंट ऐसा कुछ करना दे। अगर वो उसमें भी नहीं हो पा रहा, देन यू हैव टू गो फॉर द रिस्ट्रेंट। रिस्ट्रेंट करते वक्त क्या अभी रिस्ट्रेंट, अभी आपने ऑल्टरनेटिव वे कर लिए पर नहीं वर्क करा, नाउ यू आर गोइंग फॉर द रिस्ट्रेंट। अगर रिस्ट्रेंट कर रहे हो तो क्या चीज ध्यान में रखनी है? what you will keep in mind? आप रिस्ट्रेन कर रहे हो तो आप क्या ध्यान रखोगे? कंटिन्यूअसली रिस्ट्रेन नहीं रखना, वन आवरली मतलब रखना है Every फिर 2 hours? थोड़ी देर। Time of frame, which type of restraint is needed? Yes. First of all, PHCP's prescription is required. Without prescription, you cannot restrain the patient. और प्रिस्क्रिप्शन में क्या चीजें लिखी होनी चाहिए? Which टाइप type ऑफ, of restraint? Time यस, frame लिखा होगा। हाँ, कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे के लिए रिस्ट्रेन है, वो टाइम फ्रेम लिखा होगा। फिर क्यों किया हमने रिस्ट्रेन, क्लाइंट का क्या बिहेवियर था कि हमें रिस्ट्रेन करना पड़ा, वो भी हमें लिखना पड़ेगा। So this all must be written in the prescription. प्रिस्क्रिप्शन आपको 3 घंटे का दिया है, सब 3 घंटे तक फिर रिस्ट्रेंट को देखने ही नहीं जाओगे? आपको पीएचसीपी ने बोला कि 3 घंटे के लिए पेशेंट को रिस्ट्रेंट कर दो, बांध के रख दो। सो 3 घंटे तक फिर आपने, हाँ, अभी पेशेंट को रिस्ट्रेंट कर दिया, नाउ आई एम फ्री, शांति हो गई मुझे, तो आप देखने ही नहीं जाओगे पेशेंट को? No, we should check frequently. कितना फ्रीक्वेंटली? एवरी Every year. hourly. एवरी 2 आवर्स हमें वो रिस्ट्रेंट्स ओपन करके पेशेंट का स्किन असेस करना होगा, पेशेंट का न्यूरोवेस्कुलर स्टेटस अगर ज्यादा टाइट हो गया है, सो पेशेंट को न्यूरोवेस्कुलर प्रॉब्लम हो सकते हैं, सो वी हैव टू चेक ऑल दिस थिंग्स। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लमेटिक लगता है, सो यू हैव टू रिमूव द रिस्ट्रेंट। रिस्ट्रेंट जब भी आप बांधते हो तो उसकी नॉट कैसी होनी चाहिए? रिस्ट्रेंट की नॉट No. कैसी होनी, इजिली ओपन हो जाए ऐसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको खोलने में देर लगे। फिर आप रिस्ट्रेन का एक एक आपने हाथ पर ऐसे बैंड लगाया है पेशेंट का, और उसका वन एंड कहाँ पर बांधोगे आप? साइड रेल्स पर? नहीं, साइड रेल्स पर नहीं बांध सकते। यस, वी कैन नॉट टाई द अदर एंड ऑन द मूविंग ऑब्जेक्ट। साइड रेल्स ऐसे अप डाउन होती है तो उसकी वजह से ऐसे मूव होगा। सो उस पर, उस जगह पर नहीं बांधना है, बिकॉज मूव करोगे तो लूज भी हो सकता है, टाइट भी हो सकता है। सो जो स्टेबल ऑब्जेक्ट्स है, जैसे कि बेड की फ्रेम हो नीचे, फ्रेम पर बांध सकते हैं, साइड में कुछ टेबल चेयर या कुछ भी हो जो मूव नहीं करने वाले, उस पर बांधो, साइड रेल्स पर नहीं। सो आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। डॉक्यूमेंटेशन पॉइंट्स, जब भी आप सेफ्टी डिवाइस रिस्ट्रेंट्स यूज करते हो तो खुद के डॉक्यूमेंटेशन में, नर्सेस नोट्स में आपको क्या लिखना है? रीजन फॉर द सेफ्टी डिवाइस, आपको क्यों यूज करना पड़ा, कौन सी मेथड आप यूज कर रहे हो, डेट एंड टाइम, इतने बजे ये डेट को हमने यूज किया था, ड्यूरेशन कितने देर तक हमको लगाना था, वो ड्यूरेशन लिखना है। आप बीच बीच में एवरी 2 आवर्स चेक करते हो कि हाँ मुझे चेक किया था, तो आपने चेक किया वो भी डॉक्यूमेंट करो कि हाँ मैंने रिलीज किया था, एवरी 2 आवर चेक किया था, असेसमेंट किया था, असेसमेंट फाइंडिंग नॉर्मल था, ये सब लिखो। असेसमेंट कंटिन्यूड नीड फॉर सेफ्टी डिवाइस। फिर ऐसा भी होता है कि फॉर एग्जांपल डॉक्टर ने बोला है कि 8 घंटे तक रिस्ट्रेन रखना है, सो आफ्टर 8 आवर्स आपने फिर से असेसमेंट किया पेशेंट का, आपको फिर से नीड लगी कि नहीं रिस्ट्रेन फिर से करने की, वो आपने असेसमेंट किया तो वो भी लिखो। क्लाइंट का अब रिस्पॉन्स कैसा है रिस्ट्रेन करने के बाद, पहले क्लाइंट बहुत अग्रेसिव और वैसा था, तो अब रिस्ट्रेन करने के बाद कौन सा रास्ता है कि आप कर सकते हो, रिस्पॉन्स कैसा है पेशेंट का, अभी क्या पेशेंट बिहेव कर रहा है। देन ऑल्टरनेटिव्स टू रिस्ट्रेन्स, रिस्ट्रेन्स करने से पहले ये सारे ऑल्टरनेटिव टेक्निक्स है जो आप ध्यान रख सकते हो, ये पहले यूज करना है, देन यू हैव टू गो फॉर द रिस्ट्रेन्स। Read important point. What was that? What is પીએસપીટી that? પ્રિસ્ક્રિપ્શન નીડેડ છે રિસ્ટ્રેન કરતા પહેલા, અને Yes. રિસ્ટ્રેન પહેલા અલ્ટરનેટિવ મેજર પ્રાયોરિટી Yes. હોવી જોઈએ.
This is the very important point. Before doing restraint, first use alternative measures. And if you are doing restraint, there must be requirement of PHCP's prescription. पेशेंट बहुत ही अनकॉपरेटिव हो गया, आपने restraint कर दिया, फिर PHCP was not there और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था, ऑल्टरनेटिव वेज यूज करने से भी पेशेंट कंट्रोल में नहीं था, तो आपने रिस्ट्रेन करना ही पड़ा आपको, तो आप क्या करोगे? ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, सिचुएशंस। एंक्लिक्स में ऑलवेज आपको ऐसे सिचुएशन क्वेश्चंस ही आएंगे, आप ये कर रहे हो, ये कर रहे हो, नाउ व्हाट यू विल डू, ऐसा हुआ है तो आप क्या करोगे? सो પછીથી PHCP ની પ્રિસ્ક્રિપ્શન લઈ લે. yes, PHCP should write the prescription within 1 hour. 1 घंटे के अंदर अंदर पेशेंट के लिए प्रिस्क्रिप्शन बनाना ही होगा PHCP को, otherwise the nurse will help liable. So आपको ध्यान रखना है कि PHCP वो अपने काम में होगा, so आपको PHCP का ऐसे बार बार उनको रिमाइंड कराना होगा कि सर प्रिस्क्रिप्शन लिख दो, पेशेंट को रिस्ट्रेन किया है, so you have to do this thing within 1 hour. The prescription must be there. Any doubt till this? Okay, so let's start the alternatives to safety device for the client with confusion. जो हमने ऑलरेडी बॉक्स 13.5 देखा था कि जो भी कंफ्यूज्ड क्लाइंट है उसमें कौन से ऑल्टरनेटिव्स हम यूज करते हैं, सो वो हम डिटेल में स्टडी करेंगे. ऑल्टरनेटिव्स क्या है? पेशेंट को रिस्ट्रेन करने से पहले, जो पेशेंट कंफ्यूज है उसको रिस्ट्रेन करने से पहले आप क्या करोगे? सो ओरिएंट द क्लाइंट एंड फैमिली टू द सराउंडिंग्स विद एवरी इंटरेक्शन एंड आइडेंटिटी ऑफ द क्लाइंट बाय नेम. क्लाइंट को भी ओरिएंट कराना है, फैमिली मेंबर्स को भी सराउंडिंग्स पे ओरिएंट कराना है. एक्सप्लेन ऑल प्रोसीजर्स एंड ट्रीटमेंट टू द क्लाइंट एंड फैमिली. क्लाइंट कंफ्यूज है, क्लाइंट आपको कोऑपरेट नहीं करेगा बिकॉज उसको खुद को ही नहीं पता कि वो क्या कर रहा है, वो पूरा कंफ्यूज है. सो आपको उसको प्रोसीजर्स समझानी होगी, ट्रीटमेंट समझानी होगी, क्लाइंट को भी और उसके फैमिली मेंबर्स को भी समझानी होगी. Encourage the family and friends to stay with the client and use seaters for client who need supervision. Yes, आपको फैमिली और जो फ्रेंड्स जो क्लाइंट को विजिट करने के लिए आते हैं उनको एनकरेज करना होगा कि एक जन को आपको स्टे करना पड़ेगा क्लाइंट के साथ. सीटर्स आपको रखने पड़ेंगे कि जो क्लाइंट का सुपरविजन कर पाए. Assign confused and disoriented client to the rooms near the nurse station. जो ऐसे disoriented confused client है उसको कौन सा रूम दोगे? नर्स स्टेशन के नजदीक वाला रूम दोगे आप. Provide મેડમ yes, આ C point માં આપણે UAP ને કહી શકીએ stay with the patient. yes, we can tell the UAP to stay with the patient. UAP can sit with the patient. If there is no relative, no friend, so हम UAP को बोल सकते हैं. પ્રાયોરિટી UAP ને આપવાની કે પછી ફેમિલી ફ્રેન્ડ્સ ને? डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. अगर फैमिली पेशेंट लाइक आईसीयू में है और पेशेंट बहुत ही लाइक अनकोऑपरेटिव है और स्टाफ मैनेज नहीं कर पा रहा, सो ऐसे टाइम फैमिली मेंबर्स को आप नहीं बोल सकते हो बिकॉज इट विल बी हिंडर द रेप्यूटेशन ऑफ द स्टाफ मेंबर्स एंड हॉस्पिटल. सो ऐसे टाइम पे यूएपी को ही देना है. इफ यू आर इन वार्ड, पेशेंट को लाइक ऐसे पेशेंट खुद से कोऑपरेट नहीं कर रहा है, वी आर डूइंग अवर बेस्ट, at that time you can go for the relatives. So depending on the situation हमारे आंसर्स चेंज हो जाएंगे. एंक्लिक्स में ऐसा ही होता है, एक वर्ड की वजह से पूरा आंसर चेंज हो जाएगा. सो यू हैव टू सी द सिचुएशन. ऐसी सिचुएशन हो कि जिस सिचुएशन में हॉस्पिटल की रेप्यूटेशन का सवाल हो, तब हम पेशेंट के रिलेटिव्स को नहीं, यूएपी को ही बिठाएंगे कि स्टे विद द पेशेंट. पेशेंट के साथ आपको बैठना है. And if there is no any concern with the reputation of the hospital or staff members, ऐसे टाइम पर आप पेशेंट के रिलेटिव को ही बोल सकते हो कि आपका पेशेंट ऐसा है, बैठो आप पेशेंट के साथ. अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Okay. Then assign confused and disoriented client near to the nurse station. Provide appropriate visual and auditory stimuli such as night light, clocks, calendars, televisions, and radio to the client. Leave the client's room door open. Client confused है, disoriented नहीं है अपने surroundings में, कितने बजे क्या डेट है, कुछ भी पूरा oriented नहीं है. So उसको appropriate visual and auditory stimuli हमें provide करने होंगे. Visual means proper अंधेरा हो तो पूरा अंधेरा नहीं करना है. देयर मस्ट बी अ नाइट लाइट और नाइट लैम्प कि जिसकी वजह से थोड़ा क्लाइंट ओरिएंटेड हो.
क्लॉक्स रखनी है तो क्लाइंट टाइम से ओरिएंटेड हो, डेट से ओरिएंटेड हो, डेट डे, कैलेंडर्स, टेलीविजन, रेडियो, ये सब आप रख सकते हो क्लाइंट के रूम में। और क्लाइंट का रूम ओपन रखना है तो आपको पता चले, नर्स स्टेशन के सामने ही है और ओपन है तो आपको इजीली पता चलेगा। मेंटेन टॉयलेटिंग रूटीन्स means then place the familiar items such as family pictures near the client's bedside। जो familiar items है उसके और जो भी यूज करता है लाइक फैमिली पिक्चर्स है वो क्लाइंट के बाजू में ही रखने हैं, बेड साइड पर ही रखने हैं। Eliminate bothersome treatment such as NG tube feedings as soon as possible। Yes, कोई भी ऐसी ट्रीटमेंट है जो पेशेंट को बॉदर कर रही है वो सारी एलिमिनेट करनी है। फॉर एग्जांपल एनजी ट्यूब फीडिंग्स, एनजी ट्यूब फीडिंग से पेशेंट को बॉदरसम हो रहा है सो वो एलिमिनेट कर दो। इवेलुएट ऑल मेडिकेशंस दैट क्लाइंट इज रिसीविंग। क्लाइंट जो भी मेडिकेशन ले रहा है वो इवेलुएट करो बिकॉज देयर माइट पेशेंट कंफ्यूज है सो वो अपने आप से 2-3 बार ले लेगा, स्किप कर देगा। सो यू हैव टू इवेल्युएट ऑल द मेडिकेशंस दैट द क्लाइंट इज रिसीविंग। नेक्स्ट इज यूज रिलैक्सेशन टेक्निक्स विद द क्लाइंट। क्लाइंट को रिलैक्सेशन टेक्निक्स पहले यूज करवानी है। इंस्टीट्यूट एक्सरसाइज एंड एम्बुलेशन स्केड्यूल एज द क्लाइंट्स कंडीशन अलाउस। पेशेंट अगर उसकी कंडीशन अच्छी होती है, कंप्लीटली बेड रीड नहीं है, वैसा कुछ नहीं है, सो आप एम्बुलेट करवा सकते हो, एक्सरसाइज भी करवा सकते हो, बट मेक श्योर वेन एवर यू आर प्रोवाइडिंग एक्सरसाइज एंड एम्बुलेशन आपको क्लाइंट की कंडीशन पता होनी चाहिए। अगर उसकी कंडीशन में हो सके तो ही करवाना है। अगर पीएचसीपी ने मना कर दिया सो यू कैन नॉट मेक कि ना मुझे तो क्लाइंट को एम्बुलेट करना है, यू कैन नॉट डू लाइक दैट। सो उसकी कंडीशन पहले चेक करनी है। Collaborate with the PHCP to evaluate the oxygenation status, vital signs, electrolyte lab values, and other pertinent assessment findings that may provide information about the cause of the client's confusion. Yes, हमें पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल चेक करना है। अगर ऑक्सीजन पेशेंट हाइपोक्सिक हो जाएगा तो भी कंफ्यूज हो जाएगा। वाइटल साइंस चेक करना है, इलेक्ट्रोलाइट और लेबोरेटरी वैल्यूज चेक करना है। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट ऑल्टर होने से कंफ्यूजन होता है, which electrolyte, and does it increase or decrease? Potassium. Not directly. Which electrolyte is important for brain? सोडियम। Sodium. तो सोडियम ऑल्टर हो जाएगा तो पेशेंट कंफ्यूज हो जाएगा, हाइपोनाइट्रेमिया होगा तो पेशेंट इररिलेवेंटली टॉक करने लगेगा। तो दिस आर द थिंग्स यू कैन चेक जिससे आपको पता चल सके कि क्लाइंट की कंफ्यूजन का कॉज क्या है। दूसरा एक रीजन था ओल्डर एज में कंफ्यूजन, डेलीरियम। कौन से पेशेंट को देखने को मिलता है, विच कंडीशन इज देयर जिसकी वजह से पेशेंट ओल्डर क्लाइंट स्पेसिफिकली कंफ्यूज, डेलीरियम ऐसा देखने को मिलता है। अल्जाइमर। Okay, that is a disease condition, but UTI, whenever the client is UTI, suffering हाँ, from urinary UTI, incontinence. पेशेंट कंफ्यूज हो जाएगा। सो आप वाइटल साइंस चेक करोगे, लैब फाइंडिंग्स चेक करोगे, सो उसको आपको उससे आपको पता चलेगा कॉज क्या है, पेशेंट क्यों कंफ्यूज हो गया है। सो दिस इज द थिंग्स यू हैव टू चेक ऑल दिस थिंग्स। नेक्स्ट इज पॉइजन। रिस्ट्रेंट्स खत्म हो गया, नेक्स्ट इज पॉइजन। पॉइजन मीन कुछ भी ऐसी डेंजरस थिंग जो क्लाइंट ने ले ली है बाय इनहेलेशन, इंजेक्शन, any by any route, so that is called as poison. A poison is any substance that impairs the health or destroy the life. Poison means क्या, कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसको अगर आप ले लो तो आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी या समटाइम्स आपकी लाइफ भी डिस्ट्रॉय हो सकती है, लाइक इट कैन बी फैटल, जानलेवा भी हो सकता है। सो व्हेन इट इज इंजेस्टेड, इनहेल्ड और अदरवाइज एब्सॉर्ब बाय द बॉडी, खा लिया है, स्मेल कर लिया है या फिर बॉडी के कांटेक्ट में आ गया, सो एनीथिंग दैट इज कॉल्ड एज पॉइजन। स्पेसिफिक एंटीडोट्स और ट्रीटमेंट्स आर अवेलेबल ओनली फॉर सम टाइप्स ऑफ पॉइजन। सारे पॉइजन्स का एंटीडोट नहीं है, सर्टेन टाइप्स ऑफ पॉइजन्स का ही एंटीडोट और स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स है। The capacity of body tissue to recover from a poison determines the reversibility of the effect. Yes, कितना पेशेंट कितना रिकवर करेगा, कैसे रिकवर करेगा, उस वो कैसे पता चलेगा, उसकी बॉडी की कैपेसिटी कितनी है वो रिवर्स करने के लिए। फॉर एग्जांपल पेशेंट ने कुछ इनहेल कर दिया, आप उसको एंटीडोट भी दे रहे हो पर उसकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है, वो रिवर्सिंग करने में कैसे रिएक्ट कर रही है, उससे पता चलेगा कि
पेशेंट कितना जल्दी रिकवर होगा। समटाइम्स उससे भी पता चलता है कि पेशेंट ने कितना अमाउंट इंजेस्ट किया था, ज्यादा किया होगा तो रिकवरिंग के चांसेस कम हो जाएंगे। सो डिपेंडिंग ऑन द बॉडीज रिवर्सिबली इफेक्ट एंड डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट इंजेस्टेड, उसका रिकवरी की कैपेसिटी हमें पता चलेगी। Poison can impair the respiratory, circulatory, central nervous system, hepatic, GI, and renal system of the body. In short, पूरी body affect हो जाएगी, impaired हो जाएगी with the poison. The infant, toddler, and preschooler and young age school child must be protected from accidental poisoning. Yes, सबसे ज्यादा पॉइजनिंग के केसेस किस में देखने को मिलते हैं? सो जो इन्फेंट, टॉडलर, प्री स्कूलर, यंग स्कूल एज चाइल्ड, वो सब लोगों में ज्यादा देखने को मिलते हैं। वो कुछ भी ऐसे जो भी पड़ा होगा वो खा पी लेंगे, उनको पता नहीं है कि ये क्या है। सो उनमें पॉइजनिंग के एक्सीडेंट्स बहुत ही ज्यादा देखने को मिलते हैं। सो उन्हें हमें प्रोटेक्ट करना है। The older adults, diminished eyesight and impaired memory may result in accidental ingestion of poisonous substance and an overdose of prescribed medications. जो older person है उनमें भी पॉइजनिंग के रिस्क ज्यादा होते हैं। क्यों? बिकॉज उनकी आईसाइट कम हो गई है, उनकी मेमोरी भी कम हो गई है। अभी उनको कुछ पीना था पर उन्हें दिख नहीं रहा कि एग्जैक्टली ये क्या है, सो गलती से उन्होंने दूसरी चीज पी ली, उनकी मेमोरी इंपेयर हो गई। पहले कुछ मेडिकेशंस ली थी पर वो भूल गए कि हाँ मैंने ये मेडिकेशंस ली थी, और उन्होंने दूसरी बार ले ली तो ओवरडोज हो गया। सो ड्यू टू द डिमिनिश्ड आईसाइट एंड इंपेयर मेमोरी, उनमें एक्सीडेंटल इंजेक्शन पॉइजनस सब्सटेंस के और मेडिकेशन ओवरडोज के भी बहुत ज्यादा है। मेडिकेशन ओवरडोज दैट इज आल्सो फैटल, वो भी ओवरडोज हो जाएगा तो पेशेंट कैन डाई, उससे भी प्रॉब्लम्स हो जाएगा। सो बोथ थिंग्स आर फैटल। और जो छोटे बच्चे होते हैं और ओल्डर क्लाइंट्स होते हैं उनमें ये ज्यादा देखने को मिलता है। A poison control center phone number should be visible on the telephone in homes with small children. In all cases of suspected poisoning, the number should be called immediately. This is very important thing. ये आपको क्वेश्चन इतने सारे आएंगे कि आपको ये याद ही रखना है। एनक्लेक्स कंट्रीज में सारे घर में जहां पे भी टेलीफोन होता है ना, वहां पर एक पॉइजन कंट्रोल नंबर लिखा गया होता है। जो भी छोटे बच्चे हो घर में तो उन लोगों को तो खास पॉइजन कंट्रोल का नंबर स्टिक किया होना चाहिए। अगर नहीं हो ना कोई घर में तो वो पेनल्टी लगवाते हैं, वहां की गवर्नमेंट पेनल्टी करती है पेरेंट्स को। सो सारे घर में जिसमें छोटे बच्चे हो, स्मॉल चिल्ड्रन हो, वहां जो टेलीफोन रहता है वहां पर एक विजिबल एरिया में पॉइजन कंट्रोल नंबर लगाया हुआ होना चाहिए कंपल्सरीली। इन द स्कूल्स ऑल्सो, स्कूल में भी पॉइजन कंट्रोल नंबर लगा हुआ होगा। जब भी ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाता है पॉइजनिंग का, सो पहले क्या करना है? व्हाट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी स्टेप? You will take the patient to the hospital, Call immediately. call the कॉल poison control center. Yes, this is the different thing. कुछ भी पेशेंट इंजेस्ट कर लेता है, छोटा बच्चा इंजेस्ट कर रहा है, तो पहले उसको हॉस्पिटल मत ले जाओ, पहले पॉइजन कंट्रोल को कॉल करो। वो अगर बोले कि हॉस्पिटल ले जाओ या ये करो वो करो, वो जो बोले वो हमें फॉलो करना है। अगर वो बोले कि हॉस्पिटल ले जाओ, देन वी हैव टू टेक द क्लाइंट टू द हॉस्पिटल। अगर वो बोले कि वॉमिटिंग कराओ, ये करवाओ वो कराओ, तो हमें वो ही करना है। वी कैन नॉट डू एनीथिंग बाय आवर ओन। पहले हमें पॉइजन कंट्रोल सेंटर में ही फोन करना है। सो दिस इज द प्रायोरिटी स्टेप, डोंट फॉरगेट दिस स्टेप। पहला स्टेप ऑलवेज हॉस्पिटल ले जाना नहीं होगा, पहला स्टेप विल बी कॉल द पॉइजन कंट्रोल सेंटर। रिमेम्बर दिस। अभी पॉइजनिंग हमने पता चल दिया कि व्हाट इज पॉइजनिंग, कहाँ होता है। कोई किसी पर्सन को पॉइजन हो गया है, पॉइजनिंग हो गया है, उसने कुछ खा पी लिया या कुछ इनहेल कर लिया। सो व्हाट आर द इंटरवेंशंस, क्या करोगे आप? So remove any obvious material from the mouth, eyes or body and area immediately. अगर आपको दिख रहा है कुछ पेशेंट ने खाया है, उसके मुंह में है तो दिख रहा है, ऑब्वियस है, सो निकाल दो। आईज में कुछ चला गया, आपको दिख रहा है, सो वो निकाल दो। नहीं दिख रहा तो डोंट अटेम्प्ट टू रिमूव दैट। ऑब्वियस मटेरियल आपको दिख ही रहा है माउथ में, आईज में, बॉडी में, कुछ भी कहीं पे भी, तो वो निकाल दो इमीडिएटली। Identify the type and amount of substance ingested to help determine the correct type and amount of antidote needed. आपने देखा कि कुछ किसी ने कुछ खा पी लिया है, सो आपको आइडेंटिफाई करना है कि उसने क्या खाया है, लाइक कौन सा लिक्विड पी लिया है, लाइक एनी डिटर्जेंट लिक्विड, फिनाइल और एनीथिंग। सो कौन सा टाइप का लिक्विड उसने इंजेस्ट किया है और कितना इंजेस्ट किया है, थोड़ा ज्यादा
कितना। सो उससे पता चलेगा कि आपको कितना एंटीडोट देना होगा, ज्यादा इंजेस्ट किया है तो ज्यादा एंटीडोट देना होगा, और जो टाइप का लिक्विड है उसके टाइप के अकॉर्डिंग हमें एंटीडोट देना होगा। देन द कॉल द पॉइजन कंट्रोल सेंटर बिफोर टेम्पटिंग एनी इंटरवेंशन। आपने पहले आपको कुछ दिखा, जस्ट अज्यूम वन थिंग, आप एक चाइल्ड, आपका आपका खुद का चाइल्ड है, उसने कुछ खा लिया, आपको माउथ में कुछ नहीं दिख रहा, इफ दिख रहा है तो निकाल दो। फिर आपको पता चला कि माय चाइल्ड हैज कंज्यूम्ड एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन पड़ा था तो उसने पी लिया। सो कितना पिया वो आपको देखना पड़ेगा कि ही हैज इंजेस्टेड अप्रोक्सीमेटली 100-200 ml उसने इंजेस्ट कर लिया। देन यू हैव टू कॉल द पॉइजन कंट्रोल सेंटर, और आपको ये सारी डिटेल्स बतानी होगी कि he has ingested एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन अप्रोक्सीमेटली 100-200 ml। सो पहले आपको ये जानना होगा कि क्या किया है, फिर आप इंफॉर्मेशन दे पाओगे। सो फर्स्ट स्टेप वुड बी कॉलिंग द poison control center. If instructed by the poison control center to take the person to the emergency department, call the ambulance. अगर आपको पॉइजन कंट्रोल वाला ऐसा बोलते हैं कि पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाना होगा इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, तब आपको एम्बुलेंस बुलानी है। पहले तो आपको पॉइजन कंट्रोल सेंटर में ही फोन करना है, डायरेक्टली एम्बुलेंस नहीं बुलवानी है, वो बोले तो ही बुलानी है। If the victim vomits or vomiting is induced, save the vomiters if requested to do so and deliver it to the emergency department. अगर आपको पॉइजन कंट्रोल वाले ऐसा बोलते हैं कि पेशेंट को वॉमिट हो तो वो वॉमिटस स्टोर करके रखनी है और इमरजेंसी डिपार्टमेंट पर ले जानी है, सो आपको वो करना है। अगर इफ यू आर रिक्वेस्टेड टू डू सो, आपको बोला जाए ऐसा करना है तो आपको करना है, जो भी वॉमिटिंग है वो सारी लेकर जानी है। नेवर इंड्यूस वॉमिटिंग आफ्टर इंजेक्शन ऑफ लाई, हाउस होल्ड क्लीनर्स, ग्रीस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। यस, अगर पेशेंट ने कुछ लाई मीन्स बहुत ही बेसिक जो सॉल्यूशंस होते हैं ना, लाइक वॉशिंग डिश वॉशिंग लिक्विड होता है वो बहुत बेसिक होता है, अल्कलाइन होता है। फिर कपड़े धोने का जो लिक्विड होता है वो भी अल्कलाइन होता है। सो सारे वो लाई सॉल्यूशंस कहलाए जाते हैं, जो सारे अल्कलाइन हो ना वो लाई सॉल्यूशन कहलाए जाते हैं। फिर हाउस होल्ड क्लीनर्स, क्लीनर्स मीन्स ऐसे ब्लीच है, फिर हार्पिक है, ऐसे सारे क्लीनर्स, फिनाइल है, वो सारे क्लीनर्स में आएंगे। ग्रीस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ऐसा कुछ चाइल्ड ने इंजेस्ट कर लिया है सो आपको वॉमिटिंग नहीं करवानी है। क्यों नहीं करवानी है? बिकॉज वो उसने इंजेस्ट किया, पूरा जो जीआई ट्रैक था, इसोफेगस सारा डैमेज हुआ, फिर से आप वॉमिटिंग करवाओगे ऐसे जबरदस्ती गैग रिफ्लेक्स को प्रोवोक करके, तो वो फिर से बाहर आएगा, तो फिर से प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर से डैमेज होगा। सो जब भी क्लाइंट ऐसे लाई, हाउस होल्ड क्लीनर, ग्रीस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इंजेस्ट कर दे तो आपको वॉमिटिंग नहीं करवानी है। मेक श्योर दिस। नेवर इंड्यूस वॉमिटिंग इन एन अनकॉन्शियस विक्टिम। इंजेस्ट करने के बाद वो अनकॉन्शियस हो जाए तो उसमें भी वॉमिटिंग इंड्यूस नहीं करवानी है, बिकॉज ऑफ रिस्क ऑफ एस्पिरेशन। एस्पिरेशन। सो उसमें भी आपको इंड्यूस वॉमिटिंग नहीं करवानी है। द रेड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द पॉइजन कंट्रोल सेंटर शुड बी कॉल्ड फर्स्ट बिफोर अटेम्प्टिंग एन इंटरवेंशन। कुछ भी करने से पहले फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? कॉल टू पॉइजन कंट्रोल सेंटर। सेंटर। हॉस्पिटल भी नहीं ले जाना है, कुछ नहीं करना है, पहले पॉइजन कंट्रोल सेंटर को फोन करना है। वो जो भी आपको बोले वो ही करना है, आपको कुछ खुद से नहीं करना। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। यहाँ पर एनवायरमेंटल सेफ्टी खत्म हो गई। एनवायरमेंटल सेफ्टी में हमने सारे हैजार्ड्स देख लिए। नाउ अभी सेकेंड पार्ट स्टार्ट होगा, दैट इज रिलेटेड टू इन्फेक्शन। So we will see the healthcare associated infection, that is also called as nosocomial. जो हॉस्पिटल में से मिलते हैं वो उसको nosocomial infections बोलते हैं। So let's take a short break, then we will start. Online students, please come back from break. Should we start now? यस मैम। Okay, so next is healthcare associated, or it is also called as nosocomial infection. Healthcare associated or nosocomial infection are also called as hospital acquired infection. So there are three different names: healthcare associated infection, nosocomial infection, and hospital acquired infections. The infections are acquired in hospital or other healthcare facility and were not present or incubating at the time of client's admission.
कौन से इन्फेक्शन को आप हॉस्पिटल अक्वायर्ड इन्फेक्शन बोलोगे? सो क्लाइंट को हॉस्पिटल में से जो इन्फेक्शन लगा है, वो जब क्लाइंट एडमिट हुआ तब उसके कोई साइन एंड सिम्टम्स की कोई भी इंक्यूबेटिंग फैक्टर्स कुछ भी नहीं था, उसको वो इन्फेक्शन हॉस्पिटल में से या हेल्थ केयर फैसिलिटीज में से लगा है. सो दैट्स व्हाई दिस इन्फेक्शंस आर कॉल्ड एज हॉस्पिटल अक्वायर्ड इन्फेक्शंस. Clostridium difficile is spread mainly by hand-to-hand contact in a healthcare settings. Client taking multiple antibiotics for prolonged period are most at risk. बहुत ही कॉमन HI कौन सा है? क्लॉस्ट्रीडियम डेफिसाइल. वो कैसे स्प्रेड होता है? हैंड टू हैंड कॉन्टेक्ट से स्प्रेड होता है हेल्थ केयर सेटिंग्स में, यानी कि हॉस्पिटल्स में. जो भी क्लाइंट बहुत टाइम से मल्टीपल, एक नहीं दो तीन एंटीबायोटिक्स ऐसे ले रहे हैं बहुत टाइम से, सो वैसे क्लाइंट को क्लॉस्ट्रीडियम डेफिसाइल इन्फेक्शन होने की रिस्क ज्यादा है. क्लॉस्ट्रीडियम डेफिसाइल कौन से ऑर्गन को अफेक्ट करता है? क्लॉस्ट्रीडियम डेफिसाइल इन्फेक्शन जो बैक्टीरिया है, मतलब वो कौन से ऑर्गन को अफेक्ट करेगा? इट अफेक्ट्स द इंटेस्टाइन. वो इंटेस्टिनल इन्फेक्शन है, इसकी वजह से डायरिया हो जाते हैं क्लाइंट को. सो नोट दिस थिंग, जब भी आप एंटीबायोटिक लेते हो, एंटीबायोटिक किल्स द बैक्टीरिया अलोंग विद द बैड बैक्टीरिया. जो आपके इंटेस्टाइन में गुड बैक्टीरिया है वो भी मर जाते हैं. और ये पर्सन तो बहुत लॉन्ग टर्म से ले रहा है एंटीबायोटिक्स, सो उसके अंदर जो सारे गुड बैक्टीरिया थे जो उसके गट हेल्थ इंप्रूव करने के लिए हेल्प करते थे, वो भी अब मर गया है. सो ऐसे क्लाइंट्स को जो लॉन्ग टर्म से एंटीबायोटिक्स ले रहा है उसको, और वो भी मल्टीपल एंटीबायोटिक्स, तो उसको क्लॉस्ट्रीडियम डेफिसाइल हॉस्पिटल में से लगने के रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. नेक्स्ट, कॉमन कौन से दूसरे इन्फेक्शन है जो हॉस्पिटल में से लग सकते हैं? सो कॉमन ड्रग रेजिस्टेंट इन्फेक्शन, ड्रग की वजह से रेजिस्टेंट हो जाता है वैसे इन्फेक्शन कौन से कॉमन है हॉस्पिटल में से लगने वाले? सो विनकोमाइसिन रेजिस्टेंट एंटेरोकोकाई, दैट इज VRE इन्फेक्शन. Methicillin resistant Staphylococcus aureus infection, that is MRSA infection. ये सारे जो Staphylococcus aureus है वो कौन सी ड्रग से रेजिस्टेंट हो गया है? मिथिसिलिन ड्रग से. एंटेरोकोकाई बैक्टीरिया है वो कौन से ड्रग से रेजिस्ट हो गया है? वेनकोमाइसिन से. अब उनको वेनकोमाइसिन से कोई असर ही नहीं हो रहा. सो दिस आर द इन्फेक्शन. मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्यूलोसिस. ट्यूबरक्यूलोसिस वी नो कि आप थोड़ी थोड़ी लेके ऐसे स्किप करता रहेगा पेशेंट, तो उसको मल्टीपल ड्रग से रेजिस्टेंट हो जाएगा. जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलाई जो बैक्टीरिया है वो मल्टीपल ड्रग से रेजिस्टेंट हो जाएगा, तो ऐसे भी रिस्क रख सकते हैं. कार्बापेनम रेजिस्टेंट एंटेरोबैक्टीरियसिस, दैट इज CRE, वो भी हॉस्पिटल अक्वायर्ड इन्फेक्शन में कंसिडर किया जाता है. Illness and some medications such as immunosuppressants impair the normal defense mechanism. Yes. और कौन से लोगों को लगेगा? एक तो ऑलरेडी वो पर्सन को ऐसी कोई बीमारी है जिसमें इम्यून कम हो जाती है, या फिर कोई ऐसी मेडिकेशन ले रहा है जिसकी वजह से उसकी इम्यूनिटी कम हो गई है. सो उसकी वजह से उसको उसकी डिफेंस सिस्टम नॉर्मल नहीं रही है अब, और उसको इन्फेक्शन ज्यादा लगने के रिस्क बढ़ जाएंगे, हॉस्पिटल इन्फेक्शंस. The hospital environments provides exposure to variety of virulent organisms that the client has not been exposed to in the past. Therefore, the client has not developed resistance to this organism. हॉस्पिटल एनवायरनमेंट कैसा होता है? उसमें इतने सारे जर्म्स, बैक्टीरिया और वायरसेस होते हैं. जो भी क्लाइंट हॉस्पिटल में आएगा वो तो पहली बार एक्सपोज हो रहा है ना ऐसे बैक्टीरिया और वायरसेस से. उसकी बॉडी में रेजिस्टेंस अभी डेवलप ही नहीं हुआ है कि अगर ऐसा कोई बैक्टीरिया, ऐसा कोई वायरस अंदर आ जाए तो कैसे फाइट करना है. उसकी बॉडी में रेजिस्टेंस अभी डेवलप ही नहीं हुआ है ऐसे ऑर्गेनिजम्स के लिए. सो उन लोगों को ज्यादा रिस्क है. हम हॉस्पिटल में ही वर्क करते हैं, हमारी बॉडी अब अडेप्ट हो गई है कि हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट में जो बैक्टीरिया वायरसेस है उनको कैसे फाइट देनी है. पर जो नए लोग हैं उन लोगों की अभी रेजिस्टिविटी डेवलप नहीं हुए, सो उन लोगों को ज्यादा चांसेस है, रिस्क बहुत ज्यादा है. Infection can be transmitted by healthcare personnel who fail to practice proper standard precautions, that is hand washing procedure or failure to change the gloves between client contacts. ये सारे जो इन्फेक्शंस है वो कौन सी वजह से ट्रांसमिट होते हैं? सो हेल्थ केयर पर्सनल की वजह से ट्रांसमिट होते हैं.
कौन से हेल्थ केयर पर्सनल? जो प्रॉपर स्टैंडर्ड प्रैक्टिस प्रिकॉशंस फॉलो नहीं करते, लाइक वो हैंड वॉशिंग नहीं करते, फिर दो पेशेंट को छूने से पहले बीच में ग्लव्स चेंज नहीं करते, वो एक ही ग्लव से सारे पेशेंट को देख रहे हैं, सो उसकी वजह से एक पेशेंट का इन्फेक्शन दूसरे पेशेंट में ज्यादा स्प्रेड होगा। At many healthcare agencies, dispensers containing an alcohol-based solution for hand sanitizations are mounted at the entrance of each client room. It is important to note that alcohol-based sanitizers are ineffective against some infectious agents such as Clostridium difficile spores. Therefore, hand washing is necessary. Yes. आपने देखा होगा कि सारी मतलब मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स में ऐसे क्लाइंट के रूम में एंटर होते ही बाहर डोर पर ऐसे साइड में वॉल में सैनिटाइजर लगाया होता है, फिर क्लाइंट के बेड पे भी हैंड सैनिटाइजर होता है। सो दिस इज फॉर द हैंड सैनिटाइजेशन, वो आप हैंड सैनिटाइज करके फिर पेशेंट को आप छू सकते हो, बट मेक श्योर कि वो हैंड सैनिटाइजर सारे बैक्टीरिया और सारे इन्फेक्शंस के सामने इफेक्टिव नहीं है। जस्ट लाइक क्लॉस्ट्रिडियम डेफिसाइल, रोटा वायरस, नोरो वायरस, वो सारे वायरसेस है, उनसे आप अगर हैंड सैनिटाइज करोगे तो वो वायरसेस क्लीन नहीं होंगे, फिर भी रिस्क है ट्रांसमिशन का। ऐसे इन्फेक्शन है, लाइक ऐसे बैक्टीरिया और वायरसेस है, क्लॉस्ट्रिडियम डेफिसाइल स्पोर्स, रोटा वायरस, नोरो वायरस, उनके लिए आपको हैंड वॉशिंग ही करना पड़ेगा। सिर्फ हैंड सैनिटाइजेशन से आप उसका ट्रांसमिशन नहीं रोक पाओगे। अंडरस्टूड? नॉर्मली आप हैंड सैनिटाइज कर दोगे तो इट इज वेरी गुड थिंग, पर अगर किसी पेशेंट को क्लॉस्ट्रिडियम डेफिसाइल, नोरो वायरस, रोटा वायरस से इन्फेक्शन है, सो आपको सिर्फ सैनिटाइजेशन से बात नहीं बनेगी, आपको हैंड वॉशिंग करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? यस। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट नोजोकॉमियल इन्फेक्शन। नोजोकॉमियल इन्फेक्शन कैसे होता है हमने देख लिया क्या होता है। अब उसके स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस, आप ऐसे कैसे प्रिकॉशंस लोगे कि आपको वो नोजोकॉमियल इन्फेक्शन ना हो, पेशेंट को ना हो। So, what is standard precautions? Nurses must practice standard precautions with all clients in any setting, regardless of diagnosis or presumed infectiveness. हर नर्स को स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस फॉलो करने ही चाहिए, जो भी सेटिंग्स में हो। हमें वैसा नहीं सोचना है कि ये क्लाइंट को तो कुछ ऐसा कोई बीमारी नहीं है, सो व्हाई वी शुड फॉलो द स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस। डोंट रिलाई ऑन द डायग्नोसिस और उसकी इन्फेक्टिव किससे इन्फेक्शन है, उसके रिगार्डलेस हमें स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस मेंटेन करने हैं। जो भी इन्फेक्शन है, जो भी कंडीशन है, हमें स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस सारे पेशेंट पे इम्प्लीमेंट करने हैं। स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस इंक्लूड, स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस में क्या क्या चीज आती है? सो इट इंक्लूड्स हैंड वॉशिंग बिफोर एंड आफ्टर द ग्लव एप्लीकेशन, ग्लव्स पहनने से पहले भी हैंड वॉशिंग करना पड़ेगा, ग्लव्स निकलने के बाद भी। Additionally, standard precautions includes the use of mask, eye protection, gowns when appropriate for the client. दूसरे स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस कैसे कहलाएंगे हैंड वॉशिंग के अलावा? सो आप मास्क यूज कर सकते हो, आई प्रोटेक्शन, फेस शील्ड, गाउन्स, ग्लव्स, जब भी नेसेसिटी हो, आप पेशेंट के कांटेक्ट में आ रहे हो, सो वैसे पेशेंट में इट इज नॉट लाइक दैट कि सारे स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस आप सारे पेशेंट में यूज करोगे, अकॉर्डिंग टू द नीड आप यूज कर सकते हो। These precautions apply to blood or body fluids, whether or not they contain blood, secretions and excretion, non-intact skin and mucous membrane. कैसे, कब आप स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस ऐसे ग्लव्स, गाउन्स और वो सब पहनोगे? तो जब आप किसी ब्लड के कांटेक्ट में आ रहे हो, कोई भी बॉडी फ्लूइड के, इट इज नॉट नेसेसरी कि वो बॉडी फ्लूइड में ब्लड है या नहीं, कोई भी बॉडी फ्लूइड हो, कोई भी बॉडी का सिक्रीशन हो, कोई भी बॉडी का एक्सक्रीशन हो, यूरिन, स्टूल, कोई भी, नॉन इंटेक्ट स्किन हो, स्किन पे ऐसे कट्स हो, कुछ भी हो, स्किन एक्सपोज है, प्रॉपर इंटेक्ट नहीं है, म्यूकस मेम्ब्रेन्स, तो ये सारे चीज आप जब कांटेक्ट में आने वाले हो, सब आप स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस यूज कर सकते हो। नेक्स्ट इज इंटरवेंशंस। स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस आप कैसे करोगे, हाउ यू विल डू, सो देयर आर इंटरवेंशन। सो फर्स्ट रिलेटेड टू हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग आप कब करोगे? सो वॉश द हैंड बिटवीन द क्लाइंट कॉन्टेक्ट, दो क्लाइंट को छूने से पहले हैंड वॉशिंग करना है। आफ्टर कॉन्टेक्टिंग विद ब्लड, ब्लड को कॉन्टेक्ट करने के बाद बॉडी फ्लूइड, सिक्रीशन, एक्सक्रीशन, नॉन इंटेक्ट स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन्स, after contact with equipment or contaminated articles and immediately after removing the gloves. कब कब आपको हैंड वॉश करना है? सो पहले तो आप दो क्लाइंट्स को छूते हो उससे बीच में,
जब भी आप कोई भी सिक्रीशन, बॉडी फ्लूइड्स, एक्सक्रीशन, नॉन इंटेक्ट स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में हो तो भी उसके बाद आपको हैंड वॉशिंग करने हैं। कोई भी कंटेमिनेटेड इक्विपमेंट आपने छुआ है पेशेंट का, तब भी आपको हैंड वॉशिंग करने हैं उसके बाद। और जब आप रिमूव करते हो ग्लव्स, तब भी आपको हैंड वॉशिंग करने हैं इमीडिएटली आफ्टर रिमूविंग द ग्लव्स। अभी ग्लव्स कब पहनने हैं रिलेटेड टू ग्लव्स, तो आपको ग्लव्स कब पहनने चाहिए, टेल मी, कोई आप मुझे बताइएगा कब ग्लव्स पहनने चाहिए। When you will wear the gloves, ये हमने सब पहनते ही हैं, सो हमें पता होना चाहिए। Operations, dressing, Whenever we are doing something invasive procedures, तो अब हमें ग्लव्स पहनने पड़ेंगे। पेशेंट की स्किन इंटेक्ट नहीं है तब आप ग्लव्स पहनोगे, बिकॉज आप ऐसे बेयर हैंड से छुओगे, सो पेशेंट अगर इन्फेक्टेड होगा तो उसकी स्किन ओपन है, आपको भी टच हो सकता है, या फिर आप इन्फेक्टेड हो, लाइक आप हॉस्पिटल में हो, सो आपके पास बहुत सारे बैक्टीरिया है, सो आप डायरेक्टली पेशेंट को छुएंगे तो वो नॉन इंटेक्ट स्किन से पेशेंट को भी इन्फेक्ट करेंगे। सो व्हेन यू विल वियर ग्लव्स, तो वियर ग्लव्स व्हेन टचिंग ब्लड, बॉडी फ्लूइड्स। आपको ब्लड ऐसे कुछ वर्क करना है कि जिसमें आप ब्लड एक्सपोज होगा, टच होगा, तो आप अपने बेयर हैंड से नहीं टच कर सकते। वी हैव टू वेयर द ग्लव्स बिफोर टचिंग एनी ब्लड और बॉडी फ्लूइड्स, सिक्रीशंस, एक्सक्रीशन, नॉन इंटेक्ट स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन्स और कंटामिनेटेड आइटम्स। रिमूव ग्लव्स एंड वॉश हैंड्स बिटवीन द क्लाइंट केयर कॉन्टेक्ट। एक क्लाइंट को आपने छू लिया, आपने सारी केयर कर दी, फिर आपको ग्लव्स रिमूव करने हैं, then you have to wash the hands, then before moving to the next client, wear the gloves again. So this is how you have to practice the standard precaution. फिर decontamination of hand, that is the hand sanitization. Hand sanitization कब करना है, so for routine decontamination of hands, use alcohol based hand rubs and when hands are not visibly soiled. जब आपने कुछ ऐसा गंदा छुआ ही नहीं है, like not patient's blood, not any body fluids, विजिबली कुछ भी गंदा नहीं हुआ है, सॉइल नहीं हुआ, तो आप सिंपली ऐसे, आप पेशेंट के रूम में गए, आपने सिर्फ ऐसे पेशेंट से बात की और पेशेंट की इंटेक्ट स्किन वैसे आपने टच किया फीवर के लिए, सो कुछ ऐसा गंदा नहीं हुआ, तो उस टाइम आप सिर्फ सैनिटाइज कर लोगे तो देन इट विल बी फाइन। पर अगर कुछ ऐसे विजिबली सॉइल हुआ है, आपने कुछ ऐसा किया है, तो आपको हैंड वॉशिंग ही करना पड़ेगा, सिर्फ हैंड सैनिटाइजेशन से बात नहीं बनेगी। कब मास्क, आई प्रोटेक्शन और फेस शील्ड कब पहनना है, सो वियर मास्क एंड आई प्रोटेक्शन और फेस शील्ड इफ द क्लाइंट केयर एक्टिविटीज मे जनरेट स्प्लैशेस और स्प्रेज ऑफ द ब्लड और बॉडी फ्लूइड। आप जब पेशेंट को केयर कर रहे हो और उसकी वजह से देयर माइट बी चांसेस कि वो जो सारे स्प्लैशेस है वो अपने ऊपर आने वाले हैं, सो ऐसे टाइम पे मास्क पहनो, आई प्रोटेक्शन पहनो, लाइक गॉगल्स पहनो, फेस शील्ड पहन सकते हो, so you can use these things when there is a risk of splashes. गाउन्स कब पहने हैं, सो वियर गाउन्स इफ soiling of the cloth is likely from the blood or body fluids, wash hands after removing the gown। अगर आप कोई ऐसी प्रोसीजर कर रहे हो कि जिसकी वजह से आपके ऊपर स्प्लैशेस गिर के अपने कपड़े खराब होने वाले हो, लाइक कपड़े गंदे होने वाले हो, ऐसा रिस्क हो, तब उस टाइम आपको गाउन पहनना होगा। और जब भी आप गाउन रिमूव करो, गाउन रिमूव करने के बाद हैंड वॉशिंग इज नेसेसरी। Steps of donning and removing the personal protective equipment, that is PP. Donning and doffing. What is donning and doffing? Donning means gloves પહેરવા, remove, અને doffing means removal. Yes. PPE kit में gloves, gowns, goggles, mask सब आ जाएगा। So कैसे पहनना है, कैसे निकालना है, so there are donning steps and doffing steps. Let's see. डोनिंग ऑफ पीपीई, दैट इज कैसे पहनना है। गाउन कैसे पहनोगे आप, सो फुल्ली कवर फ्रंट ऑफ बॉडी फ्रॉम नेक टू नीज एंड अपर आर्म्स एंड टू वेस्ट, फास्टन इन बैक एट द नेक एंड वेस्ट, रैप अराउंड द बैक। आपने देखा होगा सर्जन को या फिर कोई भी ऐसे गाउन कैसे पहनते हैं, उनको कोई पहनाता है, सो पहले फुल्ली कवर फ्रॉम द, आगे से पूरा कवर होगा, पहले आपने हाथ डाले और जो पीछे नेक पर, वेस्ट पर सारे टाई करने के लिए नॉट्स होती है, सो वो सारे ऐसे रैप करके बांध देंगे। फिर मास्क और रेस्पिरेटर, दैट इज ऑल्सो मास्क, वो कैसे पहनना है, व्हाट इज द डोनिंग स्टेप्स। Secure ties or elastic bands behind the ears and the back of the head. Fit snug to the face and below the chin. Fit to the nose bridge. Respirator fit would be checked per agency policy। पता है मास्क कैसे पहनना होगा कि वो सारे
कान के पीछे ऐसे इलास्टिक वाले होते हैं तो कान के पीछे होते हैं, या फिर पूरे हेड के पीछे ऐसे टाई करने वाले होते हैं। सो इलास्टिक बैंड वाले हो तो ईयर के पीछे रखो, और इलास्टिक बैंड वाले ना हो तो हेड के पीछे हम टाई कर सकते हैं। उसका फिटिंग कैसा होना चाहिए, तो पूरा चीन कवर होना चाहिए और नोज के ब्रिज से लेके पूरा इतना मास्क होना चाहिए। इट शुड नॉट लाइक दिस कि नोज ओपन है और आपने माउथ कवर किया है, फिर ऐसे नोज पर है और आपके चिन पूरा अनकवर है। सो ऐसा नहीं करना है, पूरा नोज के ब्रिज से लेके पूरा चिन कवर होना चाहिए। और उसका फिटिंग अकॉर्डिंग टू एजेंसी पॉलिसी, लाइक रेस्पिरेटर्स होते हैं, रेस्पिरेटर्स आपने देखा है, लाइक जब भी कोई ऐसी आपने जो ऐसे मैकेनिक्स होते हैं जो फ्यूम्स और वैसे में काम करते हैं तो वो रेस्पिरेटर्स यूज करते हैं। सो वो एजेंसी पॉलिसी के अकॉर्डिंग उसका फिटिंग हर पर्सन वो एडजस्टेबल नहीं होते। सो एजेंसी के पॉलिसी अकॉर्डिंग आपको रेस्पिरेटर फिट चेक करना होगा। गोगल्स और फेस शील्ड कैसे डोनिंग करना है, सो एडजस्ट टू फिट अकॉर्डिंग टू द एजेंसी पॉलिसी। जो गोगल्स और फेस होते हैं, गोगल्स एडजस्टेबल नहीं होते, फेस शील्ड एडजस्टेबल नहीं होता। सो हमें वो फिटिंग अकॉर्डिंग टू एजेंसी पॉलिसी एडजस्ट करना होगा। आपने देखा होगा कि सारे पर्सन के गोगल्स अलग अलग होते हैं अगर ऐसी कोई सर्जरी करनी हो। सो आपने जैसे गाउन कैसे सारे पेशेंट सारे सर्जन का अलग अलग होता है, सो वैसे गोगल्स फॉर फेस शील्ड भी अलग अलग होते हैं। Gloves. Select appropriate size and extend to cover wrist of the gown. ग्लव्स में अपने पहले अप्रोप्रिएट साइज ले लो, ना ज्यादा बड़े ना ज्यादा छोटे, अप्रोप्रिएट साइज लेके जो गाउन की ऐसे जो रिस्ट पर जो है उसके ऊपर ग्लव्स करने हैं। इट इज नॉट लाइक कि ग्लव्स के ऊपर गाउन की स्लीव्स हो, ऐसे नहीं। गाउन के स्लीव्स के ऊपर हमारे ग्लव्स होने चाहिए। तो जो सारे बॉडी फ्लूइड से ऐसे अंदर जो गैप है उसके अंदर से हमारे अंदर ना चले जाए। सो गाउन की स्लीव्स होनी चाहिए, उसके ऊपर ग्लव से हमें पैक कर देना है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू वियर द पीपीई किट। नाउ रिमूवल ऑफ द पीपीई किट, दैट इज द डोफिंग। सो गाउन कैसे रिमूव करना है, अनफास्टन एट द नेक and then at the waist, remove using peeling motion, pulling gown from each shoulder towards the hand, allow gown to fall forward and roll into a bundle to discard। कैसे खोलना है, तो पहले नेक से खोलनी है नॉट, फिर वेस्ट से खोलनी है नॉट। ऐसा नहीं कि पहले वेस्ट से खोल दी फिर नेक से, ऊपर से खोलना स्टार्ट करो, फिर ऐसे शोल्डर से पकड़ के ऐसे निकालना है, आगे की तरफ हमें निकालना है और उसको गिर जाने देना है। ऐसे हम निकालोगे आर्म से ऐसे शोल्डर की तरफ से तो वो गिर जाएगा। जैसे ही गिर जाए उसको ऐसे बंडल में से पूरा रोल कर देना है और फिर डिस्कार्ड करना है। वो जो बैग होती है जहां पर अभी वो इन्फेक्शन कंट्रोल के पास चला जाएगा और वहां पर क्लीनिंग होगा, तो वो बैग होती है, ट्रॉली होती है, उसमें ऐसे रोल करके बंडल करके उसको डाल देना है। मास्क और रेस्पिरेटर कैसे निकालना है, ग्रास्प द बॉटम टाइज देन द टॉप टाइज टू रिमूव। अगर आपने टाई किया हुआ है, ऐसे बांधा हुआ है, तो पहले बॉटम का खोलना है फिर अप का खोलना है और निकालना है। एंड इफ इट इज इलास्टिक, तो इलास्टिक में भी पहले बॉटम से ऐसे पकड़ के ही निकालना है मास्क। गॉगल्स और फेस शील्ड कैसे रिमूव करना है, सो रिमूव फ्रॉम द बैक बाय लिफ्टिंग द बैंड और ईयर पीस। पीछे से निकालना है गॉगल्स की फेस शील्ड जो भी हो, सो पीछे से ईयर पीस के आगे होता है, सो वहां से ऐसे पकड़ के निकालना है। यू कैन नॉट रिमूव द गॉगल्स लाइक दिस। आपने ऐसे कुछ पहना हो तो ऐसे पकड़ के हम नहीं निकाल सकते, आगे से नहीं निकालना है, वी हैव टू रिमूव फ्रॉम द बैक। पीछे की जो स्टिक है वो पकड़ के निकालनी है। ग्लव्स कैसे रिमूव करने हैं, सो ग्रास्प आउटसाइड ऑफ द ग्लव्स विथ ऑपोजिट हैंड with gloves still on and peel off. Hold on to the removed glove and gloved hand. Slide fingers of the ungloved hand under the clean side of remaining glove at the wrist and peel off. आपको पता होना चाहिए ग्लव्स कैसे निकालोगे। मेरे दोनों हाथ में ग्लव्स है, सो मैं मेरे डोमिनेंट हैंड से ऊपर टच करके ये ग्लव निकाल दूंगी। अंदर मैं फिंगर इंसर्ट नहीं करूंगी बिकॉज अंदर मेरा अभी क्लीन है, हाथ अंदर से मेरे क्लीन है, ऊपर से गंदे है। सो मैं ऊपर से ही ऐसे पील करके निकाल दूंगी। फिर मैंने निकाल दिया तो ये ग्लव्स मैं अपने हाथ में ही पकड़ के रखूंगी, ऐसे फेंक नहीं दूंगी, ये अपने हाथ में ही ऐसे ग्लव्स निकाल के मैं पकड़ूंगी। और दूसरा ग्लव है, ये मेरा हाथ अभी क्लीन है, ऊपर से ग्लव गंदा है, सो मैं नीचे से जो फिंगर के नीचे से ऐसे ग्लव्स के नीचे से मैं अपनी फिंगर इंसर्ट करूंगी बिकॉज मेरा हैंड क्लीन है, और मैं ऐसे रोल करके निकाल दूंगी। सो दोनों ग्लव्स एक में ही आ जाएंगे और वो पूरा फ्लिप हो गया, उल्टा हो गया। अंदर की सरफेस तो क्लीन है, तो मैं ऐसे पकड़ के डाल दूंगी, फिर मैं हैंड वॉश कर दूंगी। अंडरस्टूड ग्लव्स कैसे निकालना है। यस। Okay, so this is the donning and doffing steps.
समटाइम्स इन एग्जामिनेशन आपको सीक्वेंस पूछते हैं वो लोग, द ऑर्डर रिस्पॉन्स. सो व्हाट इज द ऑर्डर रिस्पॉन्स? राइट इट डाउन एवरीवन. Okay. Is there any space? Okay. For donning. Donning के लिए first क्या है? You have to wear first gown, then mask, then goggles, then last में आपको gloves पहनने हैं. So this is the donning sequence. Doffing के लिए sequence क्या है? What is the sequence for doffing? So first you have to remove gloves, then you have to remove gown, then you have to remove goggles, and then last you have to remove the mask. Understood the sequence? डोनिंग एंड डोफिंग सीक्वेंस है. डोनिंग पहनना कैसे? पहले क्या पहनोगे? गाउन पहनोगे, फिर मास्क पहन लोगे, फिर गोगल्स पहन लोगे और लास्ट में ग्लव्स पहन लोगे. रिमूव करना है तो क्या पहले रिमूव करोगे? पहले ग्लव्स निकाल दोगे, फिर गाउन, फिर गोगल्स एंड लास्ट में मास्क निकालना है. अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Okay, so remember this sequence for donning and doffing. Okay, so next clean the standard precautions कैसे maintain करना है वो हम देख रहे थे. So PP donning and doffing हमने देख लिया. Clean and reprocess the client care equipments properly and discard the single use item. अगर आप client पर, हमने gloves कैसे पहनना है सब देख लिया, अब equipments की बारी है. अगर आप कोई ऐसे equipments client पर use कर रहे हो जो client infected है, so उसको use करने के बाद हमें clean करना होगा. For example, you are using a stethoscope. तो स्टेथोस्कोप आपको स्टेरिलियम से ऐसे क्लीन करना होगा दूसरे पेशेंट को यूज करने से पहले, और अगर सिंगल टाइम वाला हो तो आपको सिर्फ डिस्कार्ड कर देना है. प्लेस द कंटामिनेटेड लिनन इन अ लीक प्रूफ बैग एंड limit handling to prevent the skin and mucous membrane exposure. Dispose according to agency policy. आप पेशेंट की बेडशीट चेंज करते हो तो वो कंटामिनेटेड है, गंदी है, सो उसको लीक प्रूफ बैग में हमें डालना है. और जब भी लाइक स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन से एक्सपोजर ना हो ऐसे हैंडलिंग करना है. और जहां पे भी ऐसे डिस्पोज करना है वो क्लीनिंग के लिए हम दे देते हैं, तो वहां पर अकॉर्डिंग टू एजेंसी पॉलिसी हमें वहां पर भेज देनी है, पर वो ओपन नहीं होनी चाहिए, लीक प्रूफ होनी चाहिए, बिकॉज वहां पर बैक्टीरिया और वायरसेस है. अगर ओपन होगी तो वो सारे एनवायरमेंट में आ जाएंगे. यूज needleless devices or special needle safety devices whenever possible to reduce the risk of needle sticks and sharp injuries to healthcare workers. हमें ऐसे जो भी डिवाइसेस यूज कर रहे हैं वो नीडल लेस यूज करने चाहिए एज मच एज पॉसिबल. नीडल सेफ्टी ध्यान में रखनी चाहिए, बिकॉज जितनी बार आप पेशेंट की नीडल से ऐसे प्रिक हो जाओगे आपको नीडल स्टिक इंजरीज हो जाएगी हेल्थ केयर वर्कर्स को. तो मेक श्योर करो कि आप जो भी डिवाइसेस यूज कर रहे हो वो शार्प ना हो कि आपको पंचर हो जाए, पेशेंट की छुई हुई, पेशेंट को इन्फेक्टेड वाली हमें नीडल स्टिक इंजरी ना हो, वैसा ध्यान रखना है. डिस्कार्ड ऑल शार्प इंस्ट्रूमेंट्स एंड नीडल्स इन अ पंचर proof container. Dispose of all needles uncapped and engage the safety mechanism on the needle if available. आपको सारी शार्प और इंस्ट्रूमेंट्स और नीडल्स पंचर प्रूफ बैग में ही, कंटेनर में ही डिस्कार्ड करनी है. और मेक श्योर कि आप अनकैप ही कर दो, बिकॉज रिकैपिंग से क्या होगा, नीडल स्टिक इंजरी हो जाएगी. सो वी कैन नॉट रिकैप द नीडल, जैसी है अनकैप आप डाल सकते हो. और अगर सेफ्टी मैकेनिज्म हो, कुछ ऐसी सिरिंज आती है कि आप जैसे एक बार यूज करो ना तो उसकी नीडल लाइक ब्रेक हो जाएगी, ऑटोमेटिकली वो अंदर चली जाएगी, और ऐसे मैकेनिज्म वाली आती है. सो ऐसी अवेलेबल हो तो ऐसी यूज करो. Clean spills of blood or body fluids with a solution of bleach and water. Dilution should be 1:10 और agency approved disinfect. अगर कुछ ऐसा बेडशीट पर या फ्लोर पर ब्लड या बॉडी फ्लूइड गिर गया है, स्पिलेज हुआ है ब्लड का और बॉडी फ्लूइड का पेशेंट का, सो उसे कैसे क्लीन करना है? सो एक सॉल्यूशन से क्लीन करना है. सॉल्यूशन में ब्लीच और वाटर का अमाउंट कैसा होना चाहिए? 1 रेशियो ब्लीच होना चाहिए और 10 रेशियो वाटर होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 10 ml वाटर लिया है, इफ यू आर टेकिंग 10 ml वाटर, तो ब्लीच कितना लोगे? 10 ml वाटर है तो ब्लीच कितना होगा?
1 ml. 1 ml. ओके, इफ यू आर टेकिंग 30 ml वाटर तो ब्लीच कितना होगा? 3 ml. 3 ml. यस, सो आपको ये रेशियो मेंटेन करना है. आप अगर बहुत ज्यादा लेते हो, लाइक 3 ml ही वाटर लेते हो, तो आपको उसको 0.3 ml ये लेना होगा. सो दिस इज हाउ यू हैव टू मेंटेन द रेशियो. 1:10. एक एक रेशियो आप ब्लीच का ले लो, सो उससे 10 गुना ज्यादा आपको पानी लेना है. सो मेंटेन दिस रेशियो. और एल्स जो भी डिसइंफेक्टेंट हॉस्पिटल में यूज होता होगा कि फ्लोर्स क्लीन के लिए, तो वो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो. Okay. The red important point for you, that is you have to remember, handle all blood and body fluids from all client as if they were contaminated. जो सारे blood और body fluids है वो हमें ऐसे ही हैंडल करने हैं कि सारे कंटामिनेटेड है. क्लाइंट को कोई भी ऐसी डिजीज कंडीशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, पर हमारे लिए ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स आर वेरी इन्फेक्टेड. हमें ऐसे ही काम करना है. लाइक ऐसे नहीं कि ये पेशेंट को ऐसे कोई भी बीमारी नहीं है जो ब्लड से स्प्रेड होती हो, तो इट इज फाइन टू टच देयर ब्लड. डोंट डू लाइक दैट. सारे ब्लड और बॉडी फ्लूइड्स को हमें ऐसे ही हमें देखना है कि वो सब कंटामिनेटेड ही है, तभी आप स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस मेंटेन कर पाओगे. अंडरस्टूड? Yes, ma'am. ओके. Next is different types of precautions: airborne precautions, droplet precautions, contact precautions. This is so important topic. इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आएंगे. ये आपको thoroughly टिप ऑफ द टंग होना चाहिए कि एयरबॉर्न प्रिकॉशंस कौन से डिजीज कंडीशन में लेने हैं, कैसे लेने हैं. ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस कौन सी कंडीशन में लेने हैं, कौन से डिजीज कंडीशंस में लेने हैं, कैसे लेने हैं. कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस कौन से डिजीज कंडीशन में लेने हैं, कैसे लेने हैं. कॉन्टेक्ट एंटेरिक प्रिकॉशंस कौन से डिजीज कंडीशंस में लेने हैं, कैसे लेने हैं. ये आपको टिप ऑफ द टंग होना चाहिए, बिकॉज इसमें से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा वो लोग पूछते हैं. सो डू यू वांट मी टू स्टार्ट दिस और वी कैन स्टार्ट ऑन ट्यूसडे? क्या करना है बोलो? सिर्फ 6 ही स्टूडेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. आई डोंट वांट कि सारे स्टूडेंट्स मिस कर दे ये टॉपिक. व्हाट डू यू वांट? Tuesday, ma'am. Tuesday. Okay, so we will start this important topic on Tuesday. This is so important. Don't miss the Tuesday class. Okay, Tuesday there is online class. There is no offline class. Okay, so let's do a quick revision. आज हमने क्या देखा? So we have seen the alternative devices for the client before moving on to the restraints. अगर कोई client confused है, so safety device use करने से पहले alternatives क्या use करेंगे वो हमने देखा. That we have already studied in the box. Box में जो points थे वो ही थे, थोड़े elaborate करके रखे थे कि हमें client और family members को orient करवाना है. Procedures client को और family members को भी समझानी है. कोई भी family friend पॉसिबल हो सके क्लाइंट के साथ रह सके तो हमें बोलना है कि आप रहो क्लाइंट के साथ. नर्स स्टेशन के नजदीक रखना है उनका रूम. उनको विजुअल और ऑडिटरी स्टिमुलाई प्रॉपरली अप्रोप्रिएटली हमें देनी होगी पेशेंट को. सारे जो फेमिलियर ऑब्जेक्ट्स है पेशेंट के वो इन द रीचेबल और पेशेंट की साइड में, बेड साइड में ही हमें रखने हैं. टॉयलेट रूटीन्स मेंटेन करनी है. जो भी ऐसी ट्रीटमेंट्स है जिससे पेशेंट बहुत इरिटेट हो जाएगा, बॉदर सम होगा पेशेंट को, बिकॉज ऑलरेडी पेशेंट इज कंफ्यूज, सो हमें सब अवॉइड करना है. जो भी मेडिकेशन पेशेंट ले रहा है उसका हमें ध्यान होना चाहिए. लाइक वी हैव टू इवेल्युएट ऑल द मेडिकेशंस की कौन से ले रहा है, कैसे ले रहा है, ऑल दिस थिंग्स. रिलैक्सेशन टेक्निक्स आप यूज कर सकते हो. एम्बुलेशन और एक्सरसाइज करवा सकते हो पेशेंट को, बट मेक श्योर यू know the patient condition first, then you have to do the exercise and ambulation according to the condition. आपको vital signs, laboratory test, electrolyte test, oxygen status वो सब चेक करना होगा, जिससे आपको कॉज पता चलेगा कि पेशेंट कंफ्यूज क्यों हो गया. नेक्स्ट इज पॉइजन. पॉइजन मीन्स कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसकी वजह से हेल्थ और लाइफ खराब हो, अगर इंजेस्ट कर लिया हो, इनहेल कर लिया हो, या फिर कोई भी अनदर रीजन से बॉडी में आ गया है, बॉडी में एब्जॉर्ब हो गया है, तो ऑल दिस कंसिडर एज अ पॉइजन. सारे पॉइजन के एंटीडोट नहीं है. सम पॉइजन्स हैव देयर एंटीडोट और ट्रीटमेंट, सारे पॉइजन की नहीं है. रिकवरिंग की कैपेसिटी किससे पता चलेगी कि कितना बॉडी रिवर्स कर रहा है एंटीडोट से, या कितना अमाउंट लिया था उससे भी रिकवरी की कैपेसिटी पता चलती है. पॉइजन की वजह से सारा बॉडी सिस्टम इम्पेयर हो सकता है, इंक्लूडिंग जीआई, सर्कुलेटरी, सेंट्रल नर्वस, हिपेटिक, रीनल, एवरीथिंग विल गेट इम्पेयर. कौन से लोगों में रिस्क ज्यादा है पॉइजनिंग का?
कौन से लोगों में रिस्क ज्यादा है पॉइजनिंग का? infant, toddler, preschooler, young school age child. एंड ओल्डर एडल्ट्स में भी पॉइजनिंग हो जाता है ड्यू टू देयर डिमिनिश्ड आईसाइट एंड इम्पेयर मेमोरी की वजह से ड्रग ओवरडोज ज्यादा हो जाते हैं और उसकी वजह से इट कैन बी फैटल फॉर द पेशेंट। और उनको आई साइट कम हो गया है, सो पीने कुछ और गए थे और पी कुछ और लिया, सो दिस हैपेंस इन ओल्डर एज। पॉइजन कंट्रोल फोन नंबर सारे घर में जहां पर भी टेलीफोन रखा होता है वहां पर विजिबल एरिया में लगा होना चाहिए। इंटरवेंशन, जब भी कोई चाइल्ड और किसी ने पॉइजन इंजेस्ट कर लिया है, सो आप क्या करोगे, तो पहले आपको दिख रहा है माउथ में, ऐसे माउथ में ही है तो निकाल दो, आईज में ही है तो निकाल दो, कहीं पे भी आपको दिख रहा है ऑब्वियसली तो रिमूव कर दो। कितना पिया था, क्या पिया था, वो आप चेक कर लो, जिसको आप इन्फॉर्म कर सको, आपको पता हो कि क्या पिया है, कितना पिया है, तो आप आगे इन्फॉर्मेशन दे पाओगे ना कि हाँ माय चाइल्ड हैज ड्रिंक दिस और दिस अमाउंट। फिर आपको पहले स्टेप क्या करना है, who you will call ambulance? Poison control center. Yes, you have to first call the poison control center before attempting any intervention. कुछ भी करने से पहले पहले पॉइजन कंट्रोल को फोन करो। If they are telling you कि take the child to the emergency department, then you will call the ambulance. Directly पहले एम्बुलेंस नहीं बुलानी। अगर पेशेंट को वॉमिटिंग हो गई है, वी आर नॉट इंड्यूसिंग, पेशेंट को हो गई है या फिर पेशेंट ने ऐसा कोई लिक्विड नहीं लिया कि जिसकी वजह से इसोफेगस में इरिटेशन हो रहा है, तो हम इंड्यूस करवा सकते हैं। बट कब इंड्यूस करवाएंगे, अगर पॉइजन कंट्रोल वाले बोले कि इंड्यूस कराओ वॉमिटिंग और लेके जाओ, तभी करानी है, खुद से कुछ नहीं करना है हमें। जो भी पॉइजन कंट्रोल वाले हमें बोले वो ही करना है। सो पेशेंट ने वॉमिटिंग की या इंड्यूस करवाई, तो हमें, अगर वो लोग बोले तो हमें वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट तक लेकर जाना है, तो उन्हें पता चले कि क्या इंजेस्ट किया था। जब भी ऐसा कुछ इंजेस्ट कर ले चाइल्ड, लाइक आई लाइज, हाउस होल्ड क्लीनर्स, ग्रीस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, तो हमें वॉमिटिंग इंड्यूस करवानी है, नहीं करवानी। नहीं करवानी। वी कैन नॉट इंड्यूस द वॉमिटिंग बिकॉज इट कैन डैमेज द जीआई ट्रैक्ट फर्दर। नेवर इंड्यूस वॉमिटिंग इन अनकॉन्शियस पेशेंट ऑल्सो। पॉइजन कंट्रोल सेंटर में पहले कॉल करना है, दिस इज द रेड इंपॉर्टेंट पॉइंट। कुछ भी करने से पहले वी हैव टू फर्स्ट कॉल द पॉइजन कंट्रोल सेंटर, तब इसके बाद जो भी इंटरवेंशन करनी है वो करोगे। नेक्स्ट वी हैव सीन हेल्थ केयर एसोसिएटेड और नोजोकॉमियल और हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। वैसे इन्फेक्शन जो पेशेंट को हॉस्पिटल में से लगे, पेशेंट घर से लेके नहीं आया था, पहले एडमिशन के वक्त कुछ नहीं था, आफ्टर एडमिशन पेशेंट को लगे हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज हेल्थ केयर एसोसिएटेड और नोजोकॉमियल इन्फेक्शन। कौन से कॉमन इन्फेक्शन है, सो क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसाइल, vancomycin resistant enterococci, methicillin resistant staphylococcus aureus, multi drug resistant tuberculosis, carbapenem resistant enterobacteriaceae। तो दिस आर द कॉमन इन्फेक्शंस की जो लगते रहते हैं हॉस्पिटल में से। कौन से पेशेंट को रिस्क ज्यादा है, सो ऐसे पेशेंट जिनकी इम्यून सिस्टम बहुत वीक है ड्यू टू देयर इलनेस या फिर कोई मेडिकेशन ले रहे हैं। फिर हॉस्पिटल में से क्यों लगते हैं, बिकॉज वो सारे पेशेंट है वो उतने ज्यादा एक्सपोज नहीं हुए हॉस्पिटल के ऑर्गेनिज्म से, सो वो फर्स्ट उनकी बॉडी में ऐसे रेजिस्टेंस डेवलप ही नहीं हुआ, जैसे ही वो आएंगे उनको अटैक कर दिया जाएगा ये वो ऑर्गेनिज्म से, जिसकी वजह से उनको लगते हैं। इन्फेक्शंस मेजरली किस वजह से लगते हैं, बिकॉज जो हेल्थ केयर पर्सनल है वो प्रॉपर स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस यूज नहीं करते, हैंड वॉशिंग नहीं करते, ग्लव्स चेंज नहीं करते, उसकी वजह से इन्फेक्शंस बहुत ज्यादा ट्रांसमिट होता है बिटवीन द पेशेंट्स। सारी हेल्थ केयर एजेंसीज में, मेजोरिटी ऑफ हेल्थ केयर एजेंसीज में दे आर यूजिंग द हैंड सैनिटाइजर्स, और वो सारे पेशेंट के रूम के बाहर ही लगाए हुए होते हैं, सो वी कैन यूज दैट आल्सो। बट हैंड सैनिटाइजर्स आर नॉट इफेक्टिव against some specific disease condition like Clostridium difficile infection, rotavirus infection, norovirus infection, उसमें वो काम नहीं करेंगे। At that time you have to do हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग, सिर्फ हैंड सैनिटाइजेशन से काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस। स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस मींस आप हैंड वॉशिंग करते हो, ग्लव्स, पीपीई किट पहनते हो, वो सब हम स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस में कंसीडर करेंगे। सो स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस में हमने देखा इंटरवेंशंस की, हैंड वॉशिंग कब करना है, ग्लव्स कब पहनने हैं, हैंड सैनिटाइजेशन कब करना है, मास्क, आई प्रोटेक्शन, फेस शील्ड कब पहनना है, गाउन कब पहनना है,
So that we have seen कि हैंड वॉशिंग कब करोगे, दैट इज द कॉमन सेंस, आपको पता होनी चाहिए हैंड वॉशिंग कब करना है, ग्लव्स कब पहनने हैं, वो कोई आपको सिखाएगा नहीं, यू शुड नो कि yes this is the risk of getting infected, so I have to wear the gloves and all these things. Then we have seen the steps of donning and doffing. गाउन कैसे पहनना है वो हमने देखा कि फर्स्ट हम इंसर्ट करते हैं और पीछे से कोई नॉट टाई कर देगा. मास्क कैसे पहनना है, सो अगर इलास्टिक है तो कान के पीछे लगा दो या फिर टाई कर दो. गॉगल्स और फेस शील्ड्स अकॉर्डिंग टू द साइज जो होते हैं एजेंसी पॉलिसी अकॉर्डिंग टू दैट अलग अलग होंगे. ग्लव्स आपको अप्रोप्रिएट साइज, और आपको भी पता होने चाहिए कि ग्लव्स कैसे पहनते हैं. ग्लव्स फोल्डेड होते हैं, तो वी हैव टू टक, अंदर की सरफेस क्लीन हमें मेंटेन रखनी है. एंड यू आर अप्लाइंग वन ग्लव्स, आप ऐसे जो फोल्ड किया होता है उसमें फिंगर्स टक करके पहनते हो, आपको पता होगा कि ग्लव्स कैसे पहने जाते हैं. रिमूविंग ऑफ पीपीई, गाउन रिमूव करना है तो कैसे रिमूव करोगे, तो पहले नेक आगे से टाई ओपन करनी है, फिर वेस्ट से टाई ओपन करनी है, फिर ऐसे शोल्डर से निकाल देना है और ऐसे रोल करके डिस्कार्ड कर देना है. मास्क कैसे निकालोगे, सो अगर टाई करने वाला हो तो पहले ऊपर की टाई करो, फिर नीचे की पहले नीचे की टाई देन ऊपर की टाई, और अगर इलास्टिक वाला हो तो पहले ऐसे नीचे से ऐसे निकाल सकते हो आप. गॉगल्स और फेस शील्ड आगे से नहीं पकड़ना है कभी भी, वी हैव टू रिमूव फ्रॉम द बैक. ईयर पीस और जो पीछे वाला है वहां से ही रिमूव करना है. यू हैव सीन कि नॉर्मली हम चश्मे ऐसे आगे से पकड़ के निकालते हैं, पर इसमें ऐसा नहीं करना है. ग्लव्स कैसे निकालने हैं, सो वी नो कि अंदर की सरफेस क्लीन है, सो पहला ग्लव ऊपर से ऐसे पील ऑफ कर देंगे, फिर दूसरा ग्लव वो ग्लव हाथ में रखेंगे और दूसरा ग्लव अंदर से ऐसे निकाल कर वी कैन रिमूव द ग्लव्स. व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ डोनिंग, सीक्वेंस कैसी होनी चाहिए? फर्स्ट गाउन, गाउन, मास्क, गॉगल्स एंड ग्लव्स. Yes. What is the sequence for doffing? First gloves, then gown, goggles and mask. Okay, so remember this sequence. फिर आप जो भी इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हो उनको एक पेशेंट के दूसरे पेशेंट में आप ले जा रहे हो तो उसको सैनिटाइज करो, या फिर सिंगल टाइम यूज वाला हो तो डिस्कार्ड कर दो. सारे कंटामिनेटेड लिनन्स एक लीक प्रूफ बैग में ही हमें ट्रांसपोर्ट करने हैं. नीडल लेस डिवाइसेस बने उतना कम नीडल वाले डिवाइसेस बने उतना कम यूज करना है, जिससे नीडल स्टिक इंजरीज आप प्रिवेंट कर सको, रिस्क का रिड्यूस कर सको. अगर आप नीडल्स यूज कर रहे हो तो उसे पंचर प्रूफ कंटेनर में डालना है और अनकैप्ड ही उसको डिस्कार्ड करना है. डोंट ट्राई टू रीकैप द नीडल, उसकी वजह से नीडल स्टिक इंजरी हो जाएगी. और ऐसे सेफ्टी मैकेनिज्म वाले भी नीडल्स आते हैं, सो यू कैन यूज दैट आल्सो. ओके. फिर जो भी ब्लड और बॉडी फ्लूइड स्पिल हुआ है बेडशीट पे या फ्लोर पर, तो उससे ब्लीच और वाटर के सॉल्यूशन से आपको क्लीन करना है. व्हाट इज द डाइल्यूशन रेशियो? 1:10. यस, 1:10. 1 रेशियो आप ब्लीच लोगे और 10 रेशियो वाटर लोगे. जितना भी ब्लीच लोगे उससे मल्टीप्लाई बाय 10 अमाउंट वाटर होना चाहिए. रेड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? દરેક લાઈનના બ્લડ અને બોડી ફ્લુઇડ એ કન્ટામિનેટેડ છે એ રીતે જ હેન્ડલ કરવાનું. यस, वी डोंट नो, हमें हर वक्त ब्लड और बॉडी फ्लूइड्स को ऐसे कंटामिनेटेड है वैसे ही हैंडल करना है. पेशेंट को कोई बीमारी हो या ना हो, हमारे लिए ब्लड और बॉडी फ्लूइड कंटामिनेटेड है वैसे ही हैंडल करना है, तभी आप स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस मेंटेन कर पाओगे. एनी डाउट टिल दिस? નો મેમ. Okay, so there is one important notice I want to give, but let's give. So you are having a test on 15th of February. The chapters are 6 to 11. That is from ethical issue to the nutrition chapter. There is a test. The new students who have joined on the February, like Jayanti, it is fine if you do not give the test because you have not completed those chapters. What about Heath? Have you completed from the ethical issues to the nutrition? ओनली मैम एथिकल इश्यूज नहीं कंप्लीट हुआ, बाकी सब कंप्लीट हो गया है. Yes, so you can give the प्राइमरी test. सेक्शन से मैं कंप्लीट था. हाँ, okay. So you can give the test. एक चैप्टर आपने नहीं पढ़ा है तो आप रिकॉर्डेड सेशन से देख सकते हो, and you can read by yourself also. So आपको टेस्ट देना होगा. So there is a test on 15th of February. ऑनलाइन टेस्ट होगा, आपको लिंक भेज दी जाएगी और you have to simply give the test.
टेस्ट सेम टाइम बाउंड होगा, 85 क्वेश्चंस होंगे और एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मिनट मिलेगी, सो 85 इंटू 2 170 मिनट्स आपको मिलेगी टेस्ट में। एक ही बार में आपको टेस्ट देना होगा। आप टेस्ट देते वक्त ऐसे कुछ काम करने जाओगे तो टाइम तो चलता ही रहेगा, और आपका जो रिजल्ट आप शेयर करोगे मुझे आफ्टर 170 मिनट, जो भी आप मुझे शेयर करोगे तो मुझे पता चल जाएगा कि किसने लेट टाइम दिया, एंड वो इनवैलिड कंसिडर हो जाएगा। सो दिस इज फॉर योर प्रैक्टिस, इट इज नॉट फॉर डीमोटिवेटिंग यू, और ऐसा नहीं है। थोड़े इजी क्वेश्चंस है, बहुत हार्ड क्वेश्चंस नहीं है। सो on 15th of February you are having a test. I will inform to each and every students by giving the message, and tomorrow there is no morning class. Morning class नहीं है, afternoon और evening class as it is है, morning class नहीं है। Understood? Chapter 6 to 11. Chapter 6 to 11 from ethical issues to nutrition. Okay? Yeah. Any other doubts? Tomorrow I No. won't be able to attend. Tomorrow I'm having B shift, that's why. Tomorrow there is no morning class. Tomorrow there is holiday in morning class. Other class are still as it is, but morning class I have taken today, so tomorrow there is holiday. Okay. Okay. Any other doubts? No. Okay, so see you directly on Tuesday. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you.